Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Ah shit, here we go again. बैराम काजी सामने होते तो ज्यादा मजा आता. बैठे हुए हो तुम जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये हरकतें कर रही है. हाँ बस यार आई नो कि बहुत ही एक बुरी हार थी पाकिस्तान के लिए बट इट कुड नॉट हैव बीन अ बेटर वीक फॉर मी पर्सनली Yeah, मतलब congratulations on that, bro. thanks it all came to me like instantly. I feel like when I was coming to England I thought कि यार I'd have to probably prove myself a bit, have some conversations, network and get my way to the com box. और day one पे ही मिल गया com box और फिर I'm Wow. commentating for the rest of the series, so I had to honestly process those feelings. So personally, yes, a big milestone and a great week. But if you look at Pakistan's performance, like shambolic might not be strong enough a word, a complete and utter embarrassment. Is a disgrace, baby. Is a disgrace. It is a disgrace, and it's comedic also. I mean, they've kind of given British comedy a run for their money. Itni kharab performance. England absolutely thrashed Pakistan by an innings and 103 runs to go 1-0 up in this 3-match test series at Headingley. वैसे Headingley में माहौल बड़ा जबरदस्त था सादी. I'm not sure तू कितना बता सकता होगा looking at the TV, but the crowd was electric. बड़े को जबरदस्त यहाँ पे cheer करते हैं वो सारे. I'm sure Test cricket in England is वैसी इतनी enjoyable होती है, लेकिन इस तरह की performance के बाद फैंस भी इंग्लिश फैंस तो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन वो भी थोड़े से आई थिंक डिसअपॉइंटेड हो गए कि कोई चैलेंज नहीं मिला. सो पाकिस्तान की तरफ से ये चलो हार जीत एक अलग बात है, बट इफ यू पुट इन सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वेयर यू लुक अनइंटरेस्टेड इन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, आई थिंक पाकिस्तान फैंस तो छोड़ो, इंग्लिश फैंस भी डिसअपॉइंटेड हो गए. यार ये क्या टीम भेजी हुई है थे यार, and some people thought that I would be really sad. They didn't quite know कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो वो they were trying to be nice and everything. Yeah, they were trying to be kind, and I was like, look, they're just a bad team. अब सलमान बट जो है वो नाराज हो गया स्टुअर्ट ब्रॉड से, और कुछ लोग शील्ड बेरी के आर्टिकल से नाराज हो गए हैं. इंग्लैंड जैसी भी हो, आप तो बुरे ही हो ना यार. You're not a good team, so आप किस मुंह से आगे कुछ बोल रहे हो? You got your ass handed to you. It was an absolute spanking. An innings and 103 runs, Sadi. Pakistan were destroyed by England in 2.25 days, और 2.25 बारिश की वजह से हुई है, वरना 2 दिन में मैच खत्म था. दो से भी पहले पहले दिन भी हल्की सी बारिश थी और दूसरे दिन वैसी डिलेड स्टार्ट था. ये 2 दिन के अंदर मैच मुक रहा था. पाकिस्तान ने टोटल क्या 48 overs in the first innings खेली और 38 overs भी नहीं खेले in their second innings. भाई so total मिला के एक वनडे नहीं खेल सक रहे. अगर तुम कंबाइन करो सारे ओवर्स इन दिस टेस्ट मैच, आई थिंक इट कम्स डाउन टू 175.3 overs, which is less than 180 overs, and 180 overs is what you expect in 2 days. So in essence Pakistan has been smashed within 2 days. वो तो 2.25 हो गए because the Leeds rain finally decided to come. क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी सादी. सब लोग कंप्लेन करते ड्राउट आया हुआ था. घास यहाँ पे इंग्लैंड में was brown. I saw pictures. It was crazy, and there's a water shortage in England as well. इतने बुरे हालात चल रहे थे, and I think I made a joke at some point that they might as well have scheduled the test cricket earlier क्योंकि बारिश आ गई, but कोई फर्क नहीं पड़ा. If anything, I got a lighter morning on day 2. मैं आराम से easy होकर फिर ground गया तब. But look, Pakistan fans have every reason to feel dejected, every reason to feel disenfranchised. I feel like हम भी थक गए हैं बातें कर करके. They did win that test match, in Trinidad. Finally वो 8 consecutive test losses वाला drought खत्म किया था. But तब भी हमने कहा था ये कि यार conditions आपको आपकी वाली मिल गई. And you kind of lucked out there because Pakistan only know how to win test matches in one manner, which is when the ball is taking some turn and their spinners come into play. So, है काफी disappointed. They just completely folded. यहाँ पे Rob Barron was with me and he wrote a piece जिसमें उसने बड़ी जबरदस्त बात की. He said that Pakistan are folding like origami veterans. Yeah, I read that tweet as well. Yeah. यार मैं ना थोड़ा सा इसलिए I don't know, लोग भी हमें सुन रहे होंगे और वो बोल रहे होंगे यार they sound like a broken record, क्योंकि rinse and repeat वही बातें किए जाते हैं हम भी. क्योंकि कोई नई चीज नहीं है, कोई नई mistakes नहीं है. It's the same old BS we've been seeing from Pakistan batting, from their bowling and from their god awful fielding. कि बंदा एक चीज पे पिन पॉइंट भी नहीं कर सकता ना. Oh my God, कि कुछ इन्होंने नई गलतियां की हैं. नहीं भाई, पिछले 2.5 साल से एक ही बातें मैं और बेराम किए जा रहे हैं. So थोड़ा सा
बंदे को समझ नहीं आती कि क्या और क्या बात करे यार। आप पिछले वाले पॉडकास्ट जाके सुन लो, आपको वही मिलेगा। हाँ खैर, आई जस्ट लाइक टू एक्नॉलेज, एक तो साथ सारी ठीक बातें कर रहा है, बट दिस पॉडकास्ट इज अ बिट डिलेड, आपको कुछ देर में मिल रहा है। Yeah. इसकी कुछ वजूहात थी। आई वाज सिचुएटेड इन एन एयरबीएनबी जहाँ पे इंटरनेट था ही नहीं, वीक इंटरनेट नहीं था ही नहीं इंटरनेट। आई हैड टू बाय सिम। मैं कभी सिम नहीं खरीदता, मैं वाईफाई पे रिलाई करता हूँ। बट आई वाज लाइक ये तो काम ही नहीं चल सकता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता अगर मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं है। सो आई बॉट अ सिम, देयर वाज नो वाईफाई, एंड देन आवर बुकिंग वाज डन। रॉब बैरन इज बैक इन मैकल्सफील्ड, राइट? तो आज मैंने भी वापस लंदन जाना था, बट जैरेड हैड अनदर डे इन लीड्स, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूं। तो Steve Harmison yesterday, you know, when we were off comms, he was like, "Oh, you just live in my room." So this is Steve Harmison's room, guys. It's crazy. I don't know Steve Harmison के रूम में रह रहा है। Yeah, I am in Hami's room. He's the reason why you got this podcast at all. If we think about वरना it. नहीं मिल रहा था। Yeah, वरना मिल ही नहीं रहा था। मैं भी कल जा रहा हूँ वापस लंदन में, सारी चीजें ठीक हो गई। बट लुक, जहां पे पाकिस्तान की हम बुराई कर रहे हैं, जो कि और भी करेंगे, करते रहेंगे इस पॉडकास्ट में, अभी तो शुरू हुए हैं हम। हाँ, बड़े मौके मिलेंगे क्रिटिसिज्म के। वहां पे I'd like to appreciate England a bit. Look, this was a new era for them. Bazball's dead, and you know they played with a lot of brains. हम expect कर रहे थे chaos from England and Pakistan, but England were really really smart about everything. They were clinical, they were ruthless, they barely made any mistakes. कुछ as such गलतियां की नहीं यार, and you know when they bowl Pakistan out for 171, they then went on to bat smartly and post 409 runs of their own, a lead of 238 runs, और आपको पता था कि यार ये तो अब innings defeat आने लगी है। मगर पाकिस्तान ने तो फाइट नहीं दिखाई ना। They couldn't even force another day, they couldn't even bat 50 overs, they folded for 135, fell like a house of cards. But England को भी credit देना चाहिए, because it's not like they've got their test cricket sorted, but they played or destroyed Pakistan like, you know, boys were playing against men or men against boys. Men against boys, boys भी क्या, men against infants, bro. because ये infants ही थे, ये boys भी नहीं थे। boys इससे बेहतर cricket दिखाते थे कसम से। But इंग्लैंड की हाँ तारीफ जरूर बनती है, क्योंकि obviously it's a new era for them. Ben Stokes जिसका इतना, Ben Stokes and Baz McCullum की जो इतनी partnership थी, Baz Ball, उसको एकदम चेंज करना, क्योंकि obviously the results weren't coming in, और फिर दूसरे उनके off the field मसले। So Joe Root brought in as an emergency cover। ये मच्छर आ गया यार, ये मच्छर मक्खियां नहीं छोड़ती तुझे शादी। यहाँ पे बड़ा सुकून है, मौसम, इनकी गर्मी भी जो है ना हमारे लिए बड़ा फिट मौसम होता है। कोई मच्छर छिपकलियां मक्खियां इधर नहीं है। जबरदस्त है सीन। चूहे हैं लीड्स में, इट्स रैट सिटी, दैट्स अ बिट ऑफ, बट दैट्स अबाउट इट। अच्छा, चूहे तो खैर काफी मैनचेस्टर में भी है, चूहे तो मेरे नाक में भी है खैर काफी। अच्छा खैर, मैं क्या कह रहा था, हाँ, क्योंकि न्यू एरा था, जो रूट brought in as an emergency cover for Ben Stokes captaining the side. I really enjoyed his captaincy as well, because we saw some different kind of fields against different players. जिस तरह साउथ शकील को सेकंड इनिंग्स में आउट हुआ है, अजान अवैस लेग स्लिप पे हुआ है। So I think जो रूट ने जिस तरह की कैप्टनसी की है उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है। ऑली रॉबिन्सन एंड जॉश टांग एंड एवरी वन ऑफ दोस सिंगल पेसर्स इन देयर लाइनअप। हमारे पास तो इतनी तारीफ करने के लिए अपनी टीम के लिए नहीं है, लेकिन उनकी पेसर्स को आप जितनी तारीफ करो, दे स्टक टू अ प्लान, दे स्टक टू अ लाइन एंड लेंथ, एंड पाकिस्तान ने खुद भी मिस्टेक्स की और उन्होंने विकेट्स भी लिए। सो कूडोज टू इंग्लैंड 100%। Yeah, I mean, it was a 10 on 10 performance, quite literally, from England. और जहाँ पे Pakistan made it easier for them as well. Pakistan 10 on 10, definitely. हाँ, 10 on 10 करने के लिए उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, I would say that. Yeah, तुम ठीक कह रहे हो, because obviously, you know, not to take any credit away from England, but Pakistan had waved the white flag. I mean, ठीक है, मैं एक चीज ये जरूर बोलूंगा कि Pakistan were on the back foot even before the game started, losing Babar Azam to injury because of that busted finger. अब जो भी हो यार, कैप्टन है, he is still or should be your best batter, और हम में से काफी यही मानते हैं कि बाबर ही सबसे अच्छा है। इर्द-गिर्द बाकियों को देख के तो लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही बेहतर होगा उनसे, मगर you know, it's a big loss. You cannot underscore or undermine that sort of झटका और a jolt, right? क्योंकि बाबर is बाबर, और एक टीम के मोरल पे भी एक असर पड़ता है। and we all thought ये रामिस की गलती है सारी, रामिस ने कहा था ठीक हो जाएगा, मगर we all thought his finger will recover, but it wasn't broken, but he wasn't fit to play this game. Weirdly enough, Rob Barron, when he got to Leeds, he met Babar, उसका होटल के साथ था, and he asked him कि how's your finger, और इस वक्त तक टीम अनाउंस हो गई थी, and Babar was like fine. उसने कहा then why aren't you playing tomorrow, and Babar walked away. तो मैंने Rob Barron को बोला कि he probably didn't understand his first question, right? Like otherwise he wouldn't have said fine. It's a weird thing to say.
अच्छा, उसके ऊपर भी ना सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी फैंस तो नहीं है, इन्हें फैंस कहना थोड़ा गलत बात होगी, लेकिन कीड़े पाकिस्तानी क्रिकेट फॉलोअर्स, अच्छा क्रिकेट कीड़ेस को थोड़ा ऐसा एड्रेस करना बनता है कि ये जो इन्होंने बकवास लगाई होती है ना कि बाबर डर के भाग गया है, एक साइड पे कहते हो कि बाबर स्टैट वैट कर रहा है, दूसरी साइड पे कह रहे हो कि बाबर डर के भाग जाता है, जैसी कंडीशंस आती हैं, स्टिक टू वन थिंग। और ये मतलब व्हाई वुड ही बैक आउट, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। उंगली पे लगी है, आप लोगों ने देखा नहीं है, वेस्ट इंडीज में लगी थी, उसके बाद प्रैक्टिस गेम में उसी उंगली पे लगी है, या आप उसको श्योर ये कह सकते हो कि बार बार उसी उंगली पे क्यों लग रही है लेकिन ये क्या बात होती है? आई I स्वेयर टू mean, गॉड दीस पीपल पिस्ड मी ऑफ। I didn't even catch those comments honestly. I got a few DMs जिसमें तो लोग तुम्हारे रॉब पास तो बैरन भाई, पे रॉब तुम्हारे बैरन पे पास कब गए थे? वो भी Yeah, देखा yeah, था। तुम्हारे they पास were तो like इंटरनेट ही नहीं था ना। नहीं ग्राउंड में तो था, मैं ग्राउंड में जानी, आई वाज राइटिंग अ पीस डेली, आई वाज आई डूइंग नो, आई कमेंट्री, नो, आई वाज रिकॉर्डिंग अदर वीडियोस, तो मैं तो आई वाज कमेंट्री भी सुनी है, बाय द वे ग्रेट स्टफ ओवर देयर। thanks man. I think I was Hmm. nervous for the first 10-15 seconds and then I kind of eased into it. Yeah. Coffee was the best person to be on comms with for that first stint क्योंकि वो बड़ा easy कर देता है आपको, बहुत and इजी था यार। yeah, everyone was brilliant. Like I think I learned a lot from Manners, Neil Manthorpe, proper, you know, legend. He has this pause जो कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा is it a conscious pause, do you do this on purpose, does it come naturally to you, and it apparently comes naturally to him. But everyone, like I asked feedback from, they were like you were Yeah. also a natural, you did well, so obviously lots to learn. I feel like I Yeah. can get better at this. और Great start, great start. अभी तो मैं 3 people commentary में हूँ ना, अभी soon enough hopefully when I'm on ball by ball और 2 people commentary, वो फिर ज्यादा बड़ा learning curve होगा. But you know, 2 stints every day, I'm not complaining. Didn't even think this was possible this early. मुझे लगा था कि मैं शायद दूसरे तीसरे टेस्ट तक कुछ gigs पकड़ लूँ. ये तो गोद में ही आ गई, and kudos or lots of thanks and super grateful to Jared and John Norman. You know, they have worked with me before, TalkSport वालों ने काम किया हुआ मेरे साथ, but I didn't know that I'd already like kind of proven my worth and they just wanted me on instantly. So really chuffed with all of that. चलो एक पाकिस्तानी तो परफॉर्म कर रहा है भाई। Yeah, well, एक दो तो बेचारे बुरे नहीं खेले, मगर एक दो ही थे। We don't do ratings नहीं करेंगे, मगर बात तो सबकी करेंगे। हम सारों को ग्रुप कर रहे हैं। हाँ। Don't expect ratings at the end of this. मैंने साथ को पहले ही कह दिया था कि ये इस वाले पे नहीं, मगर मैं किसी को मैंने बेराम को कह दिया था आज जरा क्विकली रैप अप करेंगे पाकिस्तान पे फोकस करके, और फिर हाँ, मतलब दस्ती लोगों की बात कर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर आगे निकलेंगे. बट यू नो, इट वाजंट जस्ट लूजिंग बाबर आजम व्हिच इज अ जोल्ट, एंड साद इज राइट, लाइक यू नो, इट्स डम लक दैट ही गेट्स हिट इन द सेम फिंगर ट्वाइस, और वो ऑब्वियसली खेलना चाहेगा, इसमें कोई कावर्डनेस या क्या कावर्डिस की बात तो नहीं है. रॉब बैरन को आई सपोज पता नहीं कितनी गालियां पड़ी हैं, मगर मेरे डीएम्स में लोग आ गए कि इट्स अ मिसलीडिंग ट्वीट. मैंने कहा यार, 3 things. If you had a picture or got an opportunity to have a picture with Babar Azam, you would have posted it, number 1. Secondly, he did not lie. जो हुआ उसने बता दिए. And thirdly, he's not responsible for the perception of other people. वो दूसरे लोगों को थोड़ी कंट्रोल कर सकता, तो ये उसके ऊपर थोड़ी है. और मतलब उसने बस बता दिया ये हुआ था, आगे आपने जितना परसीव करना है कर लो, उसका काम थोड़ी है, किसी का काम थोड़ी है. और वैसे भी बाबर हमें पता है किस तरह का है, वो बेचारा नाइस हो रहा होगा, और जब कोई मुश्किल सवाल पूछा तो वो चला गया होगा. व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर? उसने भी गलत नहीं किया. राइट? पता नहीं है ये लोग अजीब. बस आप लोगों को कोई ना कोई चीज, आप लोग नहीं, आप लोग तो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हो, यू गाइस आर लेजेंड्स, बट जो वास्ट कीड़े जो है ना, कीड़ों को बस कीड़े निकालने के बहाने चाहिए होते हैं. बट खैर, इंग्लैंड ऑब्वियसली सपोर्ट बहुत ज्यादा था. सादी वैसे पता है, देयर इज अ बिग पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ब्रैडफोर्ड, और जब तुम कह रहे हो ना द फैंस हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, ब्रो नहीं थे, बहुत कम पाकिस्तान फैंस थे. Chock-a-block, in the words of Shoaib Akhtar, भरा हुआ था हेडिंगली का स्टेडियम. All 3 days, despite the rain and everything, I feel like we had near full houses every day. Crazy atmosphere. और मैं तो वो balcony type gantry चीज पे था ना, commentary कर रहा था. तो मुझे तो I could take it all in. I was in the open air and everything. तो वो एक माहौल भी पूरा इंग्लैंड वाला बना हुआ था. इट वाज रियली एन अवे गेम फॉर पाकिस्तान, जो कि आमतौर पे होता नहीं होता. इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलती है. मैं खुद एज अ फैन आया हुआ हूँ यार इस मुल्क में, पाकिस्तान को सपोर्ट करने. ठीक ठाक बंदा आता है, वो भी नहीं आए हुए थे. एंड देन आधे तो वही देख के, टीम न्यूज़ देख के नहीं आए होंगे ना. वो बाबर नहीं है तो क्या करें भाई. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटीज ऑफ एक्सपैट diaspora Pakistanis in England lives in Bradford. Adil Rashid is from Bradford, and Bradford लीड्स के बिल्कुल साथ है. तो वो नहीं आए, ठीक है. आई हैड कैब ड्राइवर्स वो पाकिस्तानी, दे वर लाइक, ओ कोई मैच हो रहा है, मतलब ये हाल होगा. ठीक है. तो इट वाज सैड टू सी, एंड उसी तरफ यू नो, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग दैट हेडिंगली हैजंट गॉटन एन एशेस टेस्ट मैच. एक तो इंग्लैंड यहाँ पे जीतती बहुत है, इट्स अ बिट ऑफ अ फोर्ट्रेस फॉर देम. कंडीशंस उनको काफी सूट करती हैं यहाँ पे. एंड सेकेंडली, यू नो, हेडिंगली हैज एशेस हिस्ट्री.
Stokesy वाला knock और सारा Yeah. कुछ, it really is baffling or dumbfounding that they're not getting back test. Because मुझे बड़ा मजा आया है with the facilities and everything. The only bad thing was कि मेरा press box और commentary box were on opposite ends of the ground. तो मुझे बहुत चलना पड़ता था. And then by day 3, I was like, I'll just sit in that commentary वाला area. मैं क्यों अब press box जाऊं? But Yeah. खैर, coming to my point that I still haven't made, तब से बोली जा रहा हूं मैं. बाबर तो आपने lose किया ही किया. That is a big jolt. But then England won a really important toss, Sadi. It was a very, very Yeah. important toss to win. I'm not saying England इस तरह से जीती है. Maybe the deficit would have been less अगर England toss हार जाती. शायद जीतती वो तब भी. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इस वजह से हार गया. But it was a very, very good toss to win. Joe Root won the toss, elected to field first. And I mean, England had gone in with a 4-pronged pace attack and a very good, pace attack with a lot of variety. ये चीज पाकिस्तान लैक करता है. पाकिस्तान के सारे सेमी किस्म के फास्ट bowlers हैं. England had Ollie Robinson in the Abbas role, metronomic wobble seam bowler, will nip it off the deck. फिर Josh Tongue as the enforcer, X-factor bowler who can crank up the pace, and Josh Tongue was the fastest bowler on display at Headingley. और उसके अलावा भी आपके पास जोफ्रा है जिसके अंदर खुद कोई पेस की कमी नहीं है, and you've got Gus Atkinson. So their 4-pronged pace attack was really well suited for those conditions on the morning of day 1. A very short first session, lasted about 10 overs or maybe less than 10 overs, but it was extremely nippy out there. ठीक है, the ball was Nippo nip. Nippo nip था. The ball was literally hooping around. अच्छा पता है, टीवी पे ज्यादा पता चल जाता है, आपको ग्राउंड में नहीं पता चलता. मुझे ग्राउंड में पता चल रहा था. लेकिन एंगल्स भी तो होते हैं ना. When you're in the press box or commentary box, you get a straight angle. So that was all fine. But you could tell that the ball is doing a fair bit. It's moving around or hooping around. And, the conditions did ease afterwards for batting. Ball spin bhi kar raha tha, weirdly enough. Ali Usman ko to turn bhi mili hai. So Pakistan playing the front line spinner was not a wrong call. Maybe they played the wrong one. No disrespect to Ali Usman. But बहुत मुश्किल conditions थी early on day 1. And Pakistan, when they folded for 171, वहां पे 250 कर लेते, शायद कुछ गेम बना सकते, बट 171 गेम मुक गई थी. यार जब इंग्लैंड ने डिसीजन किया ना बॉल फर्स्ट को, और पहले ही ओवर में आपको पता चला कि बॉल घूम रही है, मुझे पता था कि हमारे प्लेयर्स नहीं ज्यादा देर सर्वाइव करेंगे. सो आई वाज लाइव एट दैट टाइम एंड माय प्रेडिक्शन वाज 156 करेगा पाकिस्तान. ओके, दे मैनेज्ड टू स्कोर मोर देन दैट, 171 कर लिया. बट आई स्टिल फील जैसे ही हल्की सी बॉल में मूवमेंट आ जाती है ना, हमारे प्लेयर्स आई डोंट नो, या वो घबरा जाते हैं या उनकी टेक्निक्स ही इस तरह की डेवलप नहीं हुई कि वो उस तरह की बॉल को, मुझे बहुत अरसा हो गया देखते हुए कि हल्की सी बॉल की मूवमेंट और हमारे प्लेयर्स उसमें एक्सेल कर रहे हैं. Yeah, they were poor. हाँ, सो ठीक है, इंग्लैंड made the most of it. They won the toss. Great call to bowl first. Pakistan did not help themselves by not batting well. But then again, it's Test cricket. You have to मतलब grind करना है, आपने great show करनी है. जब तक आप वो नहीं करोगे तो आप 48 overs खेलोगे फर्स्ट इनिंग्स में और less than 38 overs खेलोगे आप थर्ड इनिंग्स में. बिल्कुल. ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे लिए कि प्लेयर्स को क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड करना नहीं आता यार. Yeah, they just don't know how to dig in, and you are absolutely right about that. इसमें कोई दो राय नहीं है. And you can come and say कि it's a bad toss to lose and a good toss to win, right? And England को जरूर फायदा हुआ. They got the best of the bowling conditions in that first innings. मगर मुझे बता यार, इसमें अब दो चीजें और आ जाती हैं. Pakistan had recovered. They were 2 down for 6, playing their first test match in England after 6 years and whatnot. ठीक है, आप 6 for 2 हो गए हो. They recovered really well. 97 for 2 थे. 97 for 2 से they were 171 all out, right? So that is yet another batting collapse. और इसमें भी you can collapse maximi ही हो गया, bro. और you can look at it in two different ways. एक, you lost 8 wickets for 74 runs, going from 97 for 2 to 171 all out, or 117 for 3 to 171 all out. तो वो 7 wickets for 54 runs, or whatever way you look at it, the collapse was once again there for the world to see. Very, very signature trademark sort of shit from Pakistan. और कुछ विकेटें आपने दी भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सारी इंग्लैंड ने ली हैं. साउथ शकील रिव्यू भी नहीं कर रहा, वो एक अलग डिस्कशन है, अंपायरिंग पे आऊंगा मैं बाद में. एंड देन चलो आउट हो गए आप, सही है, ठीक है. When day 2 started, there was a lot of moisture in the air. It was very windy over here, Sadi. बहुत सख्त हवा चल रही थी, ठीक है. Overcast skies,
ओवरकास्ट स्काइज कह दिया मैंने, ओवरकास्ट क्लाउड्स व्हाटएवर स्काइज, और कंडीशंस ओवरकास्ट स्काइज ही होते हैं, पता नहीं वो क्लाउडी हुआ था मुझे सारा लगा मामला। तुमने ओवरक्लास्ट बोला है, ओवरक्लास्ट। मैंने ओवरक्लास्ट ही बोला है, मैं कंफ्यूज यहाँ हुआ हूँ कि मैंने कुछ तो गलत बोला है, ठीक है। तो कंडीशंस हेल्पफुल थी, द बॉल वाज मूविंग अराउंड ऑन डे 2। आपने क्या किया? योर बॉलर्स वर इल डिसिप्लिन्ड, स्ट्रेइंग डाउन द लेग साइड। कितनी तो बायां गई हैं, मैं मुझे याद भी नहीं है ब्रो कितनी बायस गई हैं, बायां ही गई हैं ब्रो, बायां ही थी, और या तो you're bowling wide and short and it's just really really bad discipline. You were all over the park. Pakistan didn't target the stumps enough. जहां पे इंग्लैंड के सारे डिसमिसल ही जो उनके बॉलर्स ले रहे थे वो LBW और बोल्ड थे। You have to target the stumps. Only Abbas was trying to target the stumps and Abbas will have bad days. तो बाकी कौन खड़ा होगा फिर उस दिन, ठीक है। It was poor execution from Pakistan. Very very poor. I think bowling बहुत खराब थी. England targeted the stumps, Pakistan did not. There was still something in those conditions on day 2. अच्छी खासी बारिशें हुई थी और सब कुछ, पाकिस्तान फायदा नहीं उठा सका। पहले कोलैप्स पे हो, फिर आपको जब एड कर रहा है थोड़ा बहुत मौसम और कंडीशंस, आप फायदा नहीं उठा रहे, तो पाकिस्तान हैव नोवेयर टू हाइड. They cannot pin this loss on any particular thing. They were just really really abject, really poor, and I'm sorry but they're last on the World Test Championship rankings table. And for those people who are catching feelings when other pundits जिनकी नौकरी है टीमों को रेट करना, when they are saying that Pakistan are a really poor side and this might be the worst team to tour England from Pakistan in 50 years, you shouldn't be upset about this. ये disrespect नहीं है, ये आपके सामने सच्चाई है, ठीक है। यार मैं ना कल अब्बू के साथ जरा कॉन्वर्सेशन कर रहा था यही कि इज दिस द वर्स्ट टेस्ट साइड दैट पाकिस्तान, मतलब अपनी मेमोरी में, कि इज दिस पाकिस्तान वर्स्ट टेस्ट साइड। एक मुझे ऑब्वियसली वो 2003 के फौरन बाद वाली याद आ रही थी, और फिर ये है। उसके बीच में जितने भी आपके पास गंदे प्लेयर आए हो, कुछ भी आए हो, आप कुछ ना कुछ कर ही लेते थे, कुछ तो था। सो इसके अंदर तो देखो बैटिंग स्किल्स पे क्वेश्चन मार्क्स है बहुत ज्यादा, बॉलिंग इल डिसिप्लिन, जिस तरह तुमने बोला है कि कौन सा बॉलर है जो कंडीशंस का फायदा उठाए, जीरो। देन you've got, अभी हमने फील्डिंग पे आना है, आई एम श्योर फील्डिंग का मसला है, फील्डिंग पे तो अभी आना है भाई, आते हैं, पहले अपनी बात कर ले। then there's the game awareness issue where they just don't know how to play along with the conditions, play along with their partners. रिजवान की मैं खुरम शहजाद को जो स्ट्राइक दे दी, ये थीम बन गई हुई है पिछले 3-4 टेस्ट मैच से कि टेल के साथ नहीं खेलना था। फिर उसके बाद आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आती, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक दे जस्ट डोंट लुक इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। यार सबसे बड़ा मसला मुझे ये है, मतलब बॉडी लैंग्वेज देखो, इट्स लाइक ओह जस्ट अनदर मैच ब्रो। वो भाई पता नहीं कुछ तेरा स्वेटर पहन कर आ गए थे या किसी और का, तुमसे भी वलीद भाई का स्वेटर पहन कर आ गए, क्या सीन चल रहा था वहां पे मुझे नहीं पता। लाइक दे वर ड्राउनिंग इन दोस स्वेटर्स, और अजीब सा लग रहा था। तो मेरे स्वेटर्स इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स ब्रो। यार you are not can wrong. look ugly but you can play well, right? Do not give a shit about the sweater. Yeah, कजन सैल भी मतलब मेरे हिसाब से तो वो शायद अब टीम में भी नहीं सही तरीके से घुस रहा, वो कप्तान था, स्टैंड इन कैप्टन, शान की ऑप्शन थी, रिजवान कप्तानी कर रहा था फील्ड पे, तो मतलब फिर क्या आप कर रहे हो। खैर you're not wrong, they looked like a club side, ठीक है। और ये कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही थी in the commentary box कि if Pakistan were to play the county championship, where would they finish? And I was like, it depends on their home ground, क्योंकि if they get those drier conditions, maybe at the Oval, जहाँ पे स्पिनर से कुछ हेल्प मिलती है, शायद वहां पे कुछ जीत पाते, क्योंकि पाकिस्तान unfortunately can't win test matches in any other way other than साजिद, नोमी पायंड या अली उस्मान। बस यही एक तरीका देखा हमने पता नहीं कब से, वरना तो सिर्फ हारे हैं ना ये। Maybe the South Africa test at home is an anomaly because those conditions were slightly more varied. It wasn't a dust bowl. But is that it? But still dry conditions, spin to win ही था हमारा फॉर्मूला घर पे। वो साउथ अफ्रीका वाली भी मैं उसी पे बोलूंगा, उस तरह वाली रैंक टर्नर नहीं था, बट यार ड्राई कंडीशंस वो भी। उसके अलावा यार चलो स्पिन बॉलिंग आपकी एक सॉर्टेड है, वो वहां पे आप कुछ ना कुछ कर लोगे। पेस बॉलिंग का क्या करना है यार? I do not know. क्या करना है, कैसे सॉल्व करनी है ये? I have no idea, Sadi, because we did kind of, acknowledge the fact that Pakistan will be over-reliant on Mohammad Abbas. और Mohammad Abbas has been in great form, ठीक है? उसके साथ थोड़ी hard luck भी हो गई, and I suppose this is a good time to talk about the umpiring, because, let's face it, Saud Shakil was not out. He was too late to review, वो उसकी गलती है, मगर फिर भी not out तो वो था, ठीक है? Was missing.
and he goes for 5 then, और वो पाकिस्तान का कोलैस्पस चलता ही गया फिर, ठीक है, कोलैस्पस फॉरएवरस ही हो गया अब तो। उसके बाद रिजवान का जो LBW था, that was 2 yellows and a red. That is a really unlucky LBW, bro. Like 2 yellows and a red पे तो थोड़ी हल्की फुल्की ज्यादती है। And then Ben Duckett in the first over of that second innings of the test, England की first batting innings, he was gone. That was dead. That ball was hitting the stumps, and it was 2 reds and a yellow. I don't know why the umpire didn't raise his finger. Abbas was miffed. Tappi chad gayi thi. He was proper pissed off. Magar this might have been different agar pehle over mein Duckett out ho jata. Maybe, I don't know. I think when you lose by an innings and 103 runs, आप ये कह नहीं सकते कि ये चीज फर्क हो जाती तो इस तरह आप जीत जाते, क्योंकि आपने हारना ही था probably. देखो, सऊद शकील should have reviewed. वही again गेम अवेयरनेस वाली बात आ जाती है यार, आप क्यों इतना टाइम ले रहे हो? वहां पे अंपायर का चलो गलत डिसीजन हो जाता है। अलाउद्दीन पालेकर maybe did not have a good game, but आप तो रिव्यू कर सकते हो ना। Yeah, so वो डिसीजन I think umpire's fault and सऊद शकील's fault. Then comes in the रिजवान डिसीजन। ये हम कॉन्वर्सेशन अभी कर ही ना रहे होते अगर बेन डकेट अगली इनिंग्स में 1 येलो एंड 2 रेड्स पे होता। सो इस तरह के डिसीजंस मैंने देखे हैं। उन 3 डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान ये मैच नहीं हारा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, अपनी खामियों की वजह से, और अपनी व्हाट वर्ड शुड आई यूज कि मतलब अपने उसकी वजह से, समझ ही गए होंगे सारे। Yeah, I mean, look, you talked about the pace bowling attack, right? सबका यही सवाल था कि अरे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, this that the other, और मैं कह रहा था यार पता है अनफॉर्चुनेटली शायद यही है। I would love to tell you कि पीछे कोई बंदा है जो मिस आउट हो गया, but when we have this conversation, सादी हम किन के नाम लेते हैं? शाहीन नसीम, we agree कि अभी उनके फिटनेस के मसले चल रहे हैं। शाहीन can't hold a length, he keeps going for the magic ball, he's lost a few yards of pace. Naseem Shah maybe in the future, but he's averaging 35 in test cricket with the ball, and he was a reverse swing bowler. Primarily तो उसकी सक्सेस रिवर्स स्विंग के साथ आई है, ठीक है? जब वो टेल हूवर बनता था, या वो जो कैम ग्रीन को किसी सदी में बोल्ड मारा था, जो अब मुझे दिल में नहीं चाहता मेरे याद करने का मुझे, ठीक है? क्या शाहनवाज दहानी, ये एक नाम आ जाता है आपके दिमाग में? नियाज खान था एक लड़का पेशावर का, मगर वो कौन सा खेला है बहुत? ही इज द गाय हु आई फॉरगॉट बाय द वे, जब हम एक टाइम डिस्कशन कर रहे थे। अली रजा, उबैद शाह, these guys are young. Their bodies probably aren't ready. They'll lose steam by the third spell. We've seen it with Ubaid. They're very raw, and maybe there's something over there to work with in a few years. But that time is not now. तो dearth तो है fast bowling में, और ऊपर से ये कितनी दफा मैं और तुम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान पेस बॉलिंग अटैक इज फार टू वन डिमेंशनल इन टेस्ट क्रिकेट। अब पहले सारे वो मैजिक बॉल बॉलर्स होते थे और कोई स्टॉक बॉलर नहीं था। अब्बास का करियर खाते गए आप, उसको जितने टेस्ट खेलने चाहिए थे वो नहीं खेला। अब सारे स्टॉक बॉलर है। यू नीडेड अब्बास। इंग्लैंड हैव एन ऑली रॉबिन्सन, राइट? वो मोहम्मद अब्बास तो 100% खेल रहा है, उसके साथ दो आपने क्या कॉम्बिनेशन बनाया? Even if Abbas has had a stinker in this game, and I'm not saying कि अच्छा मैच था उसके लिए, he was also straying down the leg side, कीपर आगे रख के, जो कि I was worried Pakistan wouldn't even know कि कीपर आगे रखना है, because they might have not seen कि ब्लंडल और कैरी ने क्या हशर किया है हैरी ब्रुक का और इंग्लैंड का, right? I was really scared that they might not even be aware of this tactic. Apparently Rob Barron told सरफराज के यार एक चीज करनी है ना, क्योंकि सैफी भी था तब जब बाबर को मिला, उसने कहा बस कीपर आगे रखना है यार, ये आउट हो जाएंगे। रॉब बैरन टिप्स दे रहे हैं, ठीक है, सैफी को, बट दे डिड डू दैट। और फिर वो maybe the wind caught Abbas off guard, I don't know, but he was straying down the pads. He didn't have a good game, but one Abbas you need, 3 Abbases you maybe do not need, ठीक है? और you know मोहम्मद अली की grunts लाइव सुनना was a different experience. जैरेड ने बोला ये क्या सीन है, मैंने कहा यार ये मैंने बहुत पहले पकड़ ली थी जिंदगी में, अब मुझे इतनी सरप्राइज नहीं करती, but I don't even know if it's a grunt or you call it something else, but it's a really comical noise that he makes. And खुरम शहजाद पे तो मैं आऊंगा, मुझे खुरम शहजाद पे सेगमेंट चाहिए। मैंने तुम्हें पीस भी पढ़वाया था अपना, इसलिए क्योंकि मैं उस पर काफी बात करना चाहता हूँ। It's just, you know, Pakistan may have an Ollie Robinson in Mohammad Abbas, but they don't have a Josh Tongue, and that's pretty much it. और वो enforcer रोल में कोई है ही नहीं। दहानी is the only name we can think of, और दहानी कौन सा कोई बहुत ही इस तरह का प्लेयर जो हम कह रहे हैं कि यार वो होता ना जीत जाते, ऐसा सीन थोड़ी है। वैसे एक और बंदा है, लेकिन आई स्टिल फील ये जो आपने अवेलेबल ऑप्शंस भेजी थी, ये आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थी, अनफॉर्चुनेट, एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि उसके अंदर मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल एंड उबैद शाह हैं। या सो आमिर जमाल इन्फोर्सर रोल की जहां पे तुमने बात की है, हाँ, वाह आमिर जमाल और उबैद शाह हैं, ठीक है ना? वेल सादी मैं तुझसे पूछूं अगर कि चलो लेट्स सपोज यू ब्रिंग इन वन ऑफ आमिर जमाल एंड उबैद शाह, बोलते हुए अजीब सा लग रहा है, इन फॉर वन ऑफ द अदर पेसर्स, हु इज गोइंग आउट?
Like Mohammad Ali, we've seen him do well, but he was really bad in this test match. Fielding तो करने का दिल ही नहीं चाह रहा था ना मोहम्मद अली भाई का. वो तो किसी का नहीं दिल चाह रहा था, अब्बास का भी नहीं दिल चाह रहा था यार. अब्बास का चलो अब वो बहुत 10 ओवर का स्पेल करा कर आया और वो 36 साल का, मैं समझ सकता हूँ. मोहम्मद अली तो अभी थोड़ा जवान नहीं है, या नहीं है, शायद नहीं है जवान. 30, 31, 32, I think. Yeah, I don't even know who either of those guys, if they're good enough even, would come in for. और एक और बात जो हम करना भूल गए, good call by Saifi and cousin Sal या जो भी इस decision में involved था, to play that frontline spinner because Yeah, Ali it Usman did could. spin. ठीक है, जैसे ही Yeah. अली उस्मान आया उसको टर्न मिल रही थी और मिलती गई है. बट मुझे एक चीज बताओ तुम, and I actually want to give Ali Usman credit. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा खेला है, वो अच्छा खेला है. ठीक है, he is not a batter. इतना पता चल गया कि वो 22 की फर्स्ट क्लास एवरेज ऑफ है. पता नहीं कोई एक आधी इनिंग्स आ गई होगी, वरना मुझे नजर तो कुछ आया नहीं कि ये कुछ बैटिंग कर सकता है. ठीक है, अभी तक नहीं आया. और मैं उसको, आई एम नॉट ट्राइंग टू थ्रो हिम अंडर द बस, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो बुरा है. मगर तू मुझे बता, isn't the best spinner in both squads Sajid Khan, and wouldn't you say Pakistan's second best bowler is Sajid Khan? यार मैंने भी जब टीम अनाउंस हुई थी ना, और मैं लाइव ही था, मैं एक ही सेशन मैंने लाइव किया था इस टेस्ट मैच का, और तब भी मैं ये कह रहा था कि आई वुड प्लेड साजिद खान, बट आई थिंक पाकिस्तान ऑप्टेड फॉर अली उस्मान बिकॉज ही प्रोवाइड्स सम बेटर कंट्रोल, एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास उतने ज्यादा लेफ्टीज नहीं थे. या ये तो इसलिए था. मुझे लगता है इसलिए उसने अली उस्मान को किया. लेकिन आई स्टिल फील अली उस्मान को जो कंट्रोल, ठीक है, फाइफर लिया उसने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो कंट्रोल प्रोवाइड करना चाहिए था वो उसने नहीं किया. उसे पड़ी हुई है. हाँ, उसको तो पड़ी है. वो Yeah. प्रेशर डाल थोड़ी रहा था, उसको विकेटें मिल Yeah. गई. मतलब सादी, बाय द टाइम ही वाज गेटिंग हिज विकेट्स, एंड अगेन आई डोंट वांट टू साउंड मीन बिकॉज़ आई थिंक उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कुछ ही अच्छी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस उसमें से एक अली उस्मान है. बट मैच तो मुक चुका था जब उसकी विकेटें आई हैं भाई. प्रेशर तो नहीं डाला उसने. ही डिडंट होल्ड एन एंड, ही वाज स्टिल लीकिंग रन्स एंड व्हाटएवर, गुड फिगर्स. बट मुझे ये था कि we had this conversation that if Pakistan get to play only one frontline spinner in England, it has to be Sajid, and there are reasons for this. मानता हूं मैं, not a lot of left-handed batters in England's middle order, top order में हैं वो openers, उसके बाद नहीं आते as such. ठीक है, मान लिया मैंने. But I also feel like matchups in Test cricket are a bit overrated. I also feel like you should play your best spinner, and I genuinely feel that after Mohammad Abbas, Sajid Khan is your best bowler in this team. ठीक है, and he has that fighting spirit. He's a competitor. Fierce competitor. He's got the crazy eyes, got the mustache. वो फील्डिंग करने आता था तो थोड़ी जान में जान आ जाती थी भाई. मतलब ये वाला सीन बना था. You need those guys. You need a Sajid Khan. And आगे जाकर with this team. But आगे जाकर शायद Edgbaston, you have dry conditions there. You can maybe play a spinner. I'm not sure Lords की pitch कैसी होगी because it's been diabolical. Really seamer friendly. शायद वो demerit point के बाद कुछ flat कर दें उसे. At least they'll try to make it flat. I'm not sure if you can play a spinner there. But good call to play the frontline spinner. जब अली उस्मान विकेट ले रहा था, मैं यही सोचा था कि यार साजिद होता तो वो कितनी ले जाता, क्योंकि साजिद ने तो इंग्लैंड को जलील किया है पास्ट में, राइट? एंड अगेन आई डू थिंक मैचअप्स आर अ बिट ओवररेटेड इन टेस्ट क्रिकेट. सो रियली अनफॉर्चुनेट कि समवन हूज टेकन 400 फर्स्ट क्लास विकेट्स. तुमने ही मुझे स्टैट बताया था ये कितने हुए, तुमने किसी मुझे गेम शो के अंदर जो हम खेल रहे थे वो मैं बताया, लेकिन तुमने कितने बोले? तकरीबन 400 फर्स्ट क्लास विकेट्स है ना साजिद. मैंने कहा 8400 फर्स्ट क्लास विकेट्स. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय? Yeah, I mean, you play almost 400. Yeah, you play the experienced guy, and Sajid can provide you something with the bat as well. I can say this much: कि Sajid can provide you more with the bat than Ali Usman can provide you with the bat. और वो वही वाली बात है ना कि शायद साजिद भी लीकी होता, मगर साजिद भाई विकेटें शायद जल्दी खड़का देता. I don't know. ये hindsight में बातें करना आसान है, and it was the right call to play a frontline spinner eventually. But Pakistan's issue is the zero variety in the pace attack. They don't have an enforcer. England के पास variety है, even though they're not a great team. Yeah, but they've got variety. Yeah, they're different types of bowlers. Yes. They're all different types of bowlers. Even Gus Atkinson is a different type of bowler to Ollie Robinson, right? But Pakistan की ये सबसे बड़ी flaw है. And Saadi, Test cricket के अंदर, when you are a successful team, you need your fast bowlers, right? Bangladesh जीत रही है recently, fast bowling की वजह से जीत रही है. स्टार्की ने उड़ा है ना. स्टार्की ने तो बैटिंग को उड़ाया ना, बॉलर्स तो फिर भी चल गए बांग्लादेश के, राइट? माय पॉइंट इज कि नहीं, मैं स्टार्की की बात कर रहा था, मैं पेसर्स की ही बात कर रहा था. हाँ देखो ना, शरीफुल ने भी उड़ा दिया भाई. शरीफुल ने भी क्या 5-6 ले लिए ना, 6 फिर लिया शायद उसने. मगर देखो ना, वो कार्टेल थी ऑस्ट्रेलिया के पास, तो इतने टेस्ट मैच जीते. इंडिया के पास बुमराह शामी लोग आए तो वो टेस्ट मैचेस उस लेवल पे जीतने शुरू किए, अवे फ्रॉम होम एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? साउथ अफ्रीका के बी कार्टेल था एक. साउथ अफ्रीका के पास तो हमेशा सही रहे हैं. आई थिंक बहुत ही कम पीरियड्स होंगे जब उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं रहे, राइट? इंग्लैंड के पास जिमी ब्रॉड थे, उसके बाद अब ये ठीक है, थोड़े मसले हैं इनके भी. ऑली रॉबिन्सन के फिटनेस के मसले हैं. They're not great. They're decent. They're good.
वेस्ट इंडीज किस तरह जीती है रिसेंटली, ऑस्ट्रेलिया को किस तरह मारा गया फास्ट बॉलिंग अटैक से। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है। एंड देन अगेन आई थिंक इवन इफ दे वर ऑल स्टॉक बॉलर्स, कंडीशंस इनको बीच में सूट कर रही थी, ये फायदा नहीं उठा सके, दे वर वेरी इनडिसिप्लिन्ड, दे डिडंट बोल इनफ एट द स्टंप्स। और आप कुछ इंग्लैंड से सीख लेते, बिकॉज़ लुक एट द अमाउंट ऑफ LBWs एंड बोल्ड डिसमिसल्स व्हेन पाकिस्तान बैटर्स वर बैटिंग। डिड दैट नॉट टेल यू दैट यू नीड टू टारगेट द स्टंप्स? मगर वहां पे मोहम्मद अली भाई जो है, ही इज पुलिंग ऑफ दिस रियली पुअर इंपर्सनेशन ऑफ नील वैगनर। वो ग्रंट भी कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल भी करा रहे हैं, इट वाज जस्ट काइंड ऑफ फनी। लोग हंस रहे थे थोड़ा सा यार। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसको ग्रंट नहीं करना चाहिए, आई मीन वो शारापोवा भी करती थी, खैर जो भी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरह काम चलना नहीं है। देयर इज नॉट इनफ टाइम टू फिक्स थिंग्स। आई एम नॉट श्योर क्या बनता है इस सीरीज में। बट एक तरफ तो चलो बॉलिंग वाज इनडिसिप्लिन्ड, डिडंट मेक यूज ऑफ द कंडीशंस, बैटिंग में फिर कोलैप्स आ गया। द फील्डिंग सादी, माय गॉड, मैं फील्डिंग पे अभी आना ही नहीं है। फील्डिंग की बात करनी पड़ेगी। नहीं, पहले खुरम शहजाद की बात करो। सारे खुरम पेसर्स की बात होगी, खुरम शहजाद की नहीं हुई। हाँ, अब्बास ठीक है, आई विल गिव हिम अ फ्रीबी, ठीक है, व्हाटएवर, एक गेम नहीं थी, एक टेस्ट मैच है, खैर है, उसकी जरूरत है आपको इस टेस्ट सीरीज में, वही है अकेला। और उसके अलावा मोहम्मद अली, लुक आई डोंट नो इफ ही गेट्स द नेक्स्ट गेम और नॉट, इफ यू नीड एन एनफोर्सर मे बी ही गोज आउट और खुरम गोज आउट, बट खुरम शहजाद, I don't know if you guys read my piece that I wrote for Good Areas. It's a पढ़ो सारे piece worth reading, क्योंकि I kind of like, I really hope Khurram Shahzad doesn't know how to read or doesn't watch my piece or read my piece, but I wasn't too kind to him. यार बदतमीजी तो नहीं की। नहीं, बदतमीजी नहीं की। हाँ, I think it was fair enough. It had to be fair because I was watching that spell live और मैं सही, क्योंकि पता है that day 2 starts and Khurram Shahzad looks good. ठीक है, I'm not lying. Khurram Shahzad आया है, इसने पहली बॉल पे रूट को एक बूमिंग आउट स्विंगर मारा है and root is beaten all ends and you're like okay, all right, maybe there's something going to happen now क्योंकि conditions भी सूट कर रही हैं। उसके बाद I remember there was this nip backer to root जिस पे पैड पे लगी है और अपील हुई है, ठीक है, and you're like okay, ये जो root है, he's the second highest run scorer in test history, is the best batter across both teams, it's his home ground, right? Like ये Yorkshireman है, ये तो है ही इधर का। Weirdly enough, there were 4 Yorkshire players playing for Pakistan and 2 for England क्योंकि Abdullah Shafiq, Saud Shakil, Shan Masood and Imam ul Haq, they've all played for Yorkshire और England के पास सिर्फ Root और Brook थे। But anyway, booming out swinger beats Root's bat, फिर nip backer, appeal, not out, Root takes a single, the next time he faces Khurram again an over later, Khurram Shahzad once again gets that ball too, this time jag off the seam of the deck and he beats Root's bat again, and now you're thinking yaar Khurram तो बड़ा spell करा रहा है यार। Yeah, ये तो this is good. I am enjoying this spell. Conditions भी सूट कर रही हैं। What happens in the third over? पहली ball drifts down the pads of Jordan Cox, चौका, flick of the wrist. फिर एक दूसरी नो बॉल कराता है अपनी 3 ओवर के स्पेल की, ठीक है, इसका बड़ा मसला है नो बॉल्स का, इट्स अ बिग इशू विद खुरम शहजाद। फिर उसने 2 चौके खाए हैं ऑफसाइड पे, ही स्क्वीज्ड अवे बाय जॉर्डन कॉक्स फॉर 2 fours on the offside, and the last ball of the over has once again drifted down the pads and it's another 4. 17 runs in that over, और पिछले 2 ओवरों में इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, 3 रन दिए थे, 2 लीगल थे उनमें से सिर्फ, और फिर एकदम से 17 रन खा गया, then he's out of the attack। ये क्या देखा है मैंने? आई एम इन शॉक, आई एम ऑन कॉम्स, अबाउट टू गेट ऑन कॉम्स, और मैं हार्मी से बात कर रहा हूं, मैंने कहा यार 17 रन्स केम ऑफ दैट ओवर, इज दैट व्हाट जस्ट हैपेंड? ठीक है, अब जी वापस आया, दिस इज रियली फनी, वापस आया खुरम शहजाद 10 overs later for another spell. Jordan Cox, first ball, he bangs it in short, Jordan Cox flays at it और return catch आता है खुरम शहजाद के पास, drop off his own bowling. Dolly. ठीक है, ये वाला मैंने मिस किया था, I don't know how I just missed the dropped catch thing, because उसके बाद जो हुआ वो मैं मिस नहीं कर सका, that I really was keeping my eyes open for. Next ball, खुरम tries his luck again, वही बॉल कराता है मिड विकेट की रीजन में, चौका कॉक्स ने दे दिया, ठीक है, कॉक्स इज अ रियली पंची प्लेयर, ही इज गुड, यू नो, बैक ऑफ अ लेंथ वो अच्छी खेल लेता है, चौका हो गया। मैंने कहा चलो पिछली बॉल पे कैच निकला था तो सही है। उसके बाद भाई कजन सहल, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, सब ने बात कर ली है खुरम शहजाद के साथ कि यार मतलब जानी, मतलब ऑफ साइड वाली फील्ड सेट हुई है, एक जो बल्कि मिड विकेट पे फील्डर था वो भी सलमान अली आगा brings that fielder onto the offside. Now there are two fielders on the leg side, 7 fielders on the offside, 7-2. They're basically trying to tell खुरम शहजाद की यार जानी प्लीज ऑफ साइड पे बॉल करा दे, अब नहीं, ये नहीं चलेंगी ये वाली डिलीवरी है प्लीज, ठीक है। अगली बॉल वहीं
चौका इन दैट वेकेंट मिड विकेट रीजन। और मैं कह रहा हूँ यार, अब यू कैन सी कि तब चढ़ गई है यार, कजन सहल को भी तब चढ़ गई, रिजवान भी, सारे, अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, देयर ऑल हैविंग दीस वर्ड्स विद हिम, मगर बॉय से हो ही नहीं रहा। फिर बॉय ने करा ली एक आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, चौका, एक और चौका खा गया। अब मुझे इस वक्त हंसी आ रही है, ठीक है, बट खैर अल्टीमेटली you know the words of his teammates got through to Khurram, और फिर एक maiden over कराता है खुरम शहजाद, really good over, सारी बॉलें outside off हैं, and then ultimately Root को pin करता है LBW, Root misses a straight one and he's trying to flick and misses the ball and hits the pad, he's out, probably because he wasn't expecting कि ये अब इस तरफ कराएगा, ये off पे फेंकता रहेगा, good, smart bowling, whatever। उसके बाद खुरम भाई आते हैं, अच्छी बॉल कराते हैं, एज निकलती है, हैरी ब्रुकी हमारा is on one, हैरी ब्रुकी होता है ड्रॉप कजन सैल से इन द स्लिप कॉर्डन, who's generally or usually a very reliable slip fielder। कजन सैल उतर भी जाते हैं, पता नहीं कोई उंगली काट गई थी, क्या हुआ था, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, बट बिग ड्रॉप चांस, राइट? और उसके बाद बस that was it। I mean, I know he comes back on day 3 and gets a couple of wickets which were nice, but उस दिन उस ड्रॉप्ड कैच के बाद जो फेंटा लगना शुरू हुआ, अगली 11 बॉलों में 3 चौके, he came back later in the day for another spell, खुरम शहजाद, he was dreadful। बस यार इसके फिगर्स थे खुरम शहजाद के 3 for 133 in 21.5 overs, and that has got to be one of the most dog shit 3-fers I've ever seen in my life, man. Like, that was bad. I know his best ball is great. I know he can swing the ball in the air, he can seam it off the deck. I know people think that his action looks like Dale Steyn, but that's not going to be enough to save him. थोड़ा दिमाग भी तो लगा लो ना यार, थोड़ी कंडीशंस पे बोल कर लो, थोड़ी फील्ड के हिसाब से बोल कर लो। I don't know what that was by Khurram. It was so bad, or weirdly had patches of brilliance, that I was like, this is what I'm writing about today, because ये बहुत ही एक अजीब सा सीक्वेंस देख लिया मैंने। And that's the thing with him. He's not young. He has played a lot of first-class cricket. He's played first-class cricket in England as well in the county championship. This 3 for 133 was a poor spell. 21.5 overs, यार तुम 6 की इकोनॉमी से ज्यादा रन्स खा रहे हो। That's how leaky you are. That was the worst bowling performance by a Pakistani seamer in this test match, and he's the one who takes the most wickets for a Pakistani seamer in this test match. It's weird. That's why scorecard पे नहीं जाना चाहिए। I think Abbas का discipline वो वाला नहीं था. He wasn't as accurate as he usually is, but Abbas के साथ भी थोड़ी hard luck बीच-बीच पे हुई है, and he's had an off day. He'll have better days. Mohammad Ali, I don't know. I think I'll give him another innings, or maybe I'd like to judge him a bit more, क्योंकि he wasn't bad in the West Indies. काफी अच्छा था, यहाँ पे आकर बहुत बुरा था। ठीक है, the short ball spell didn't make sense to me. I was like, you target the stumps. उसकी भी एक ही विकेट थी, अब्बास की भी एक ही विकेट थी, और बाकी पंजा तो अली उस्मान मार के गया बॉय। मतलब अगर if we stick to Khurram Shahzad sirf, so overall he's played quite a lot of first class cricket, Behram. मतलब he's played 74 first class matches, 269 wickets हैं उसकी। He's not a youngster. He's probably not even 26 if I'm being real, right? Like थोड़ा सा बड़ा ही होगा 26 से। He's 26. He is 26 on paper, but you know what I mean. So 269 wickets हैं, एवरेज उसकी 26 है इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, पाकिस्तान की अगर पिचेस पे आप देखो तो शायद वो ठीक हुई है। कभी कभार ऑब्वियसली यहाँ में भी वेरिड कंडीशंस मिल जाती होती हैं। एक फर्स्ट क्लास सीजन में आपको इस तरह की पिचेस मिलेंगी जैसे आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी क्या, इंग्लैंड में खेल रहे हो, पीक इंग्लैंड में खेल रहे हो, जहाँ पे बस बॉल घूमी जा रही है। और फिर दूसरी में आपको ऐसी फ्लैटीज मिलेंगी दूसरे सीजन में आके, फिर स्पिन पे अब तो फोकस है। सो टेक दैट फर्स्ट क्लास एवरेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट ये जो टेस्ट है ना, he's played 9 matches now, he's picked up 35, averaging 29.14. And he's supposed to be better than this. He's supposed to be more economical than this. Khurram Shahzad, you use your skill set. आप काफी चीजें कर सकते हो. You've got this interesting action. वो jump वैसे थोड़ी इसकी कभी कभार मुझे लगता है इसको throw off कर जाती है जो end में मारता है ये. But point is that you can swing it in the air and seam it off the deck. That is a really good skill set to have. What you don't have in pace, you have in other things. You should be a good bowler. You should be a stock bowler. Why aren't your numbers that of a stock bowler? आपकी इकोनॉमी नीचे क्यों नहीं है? मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। अब चलो, ये तो एक टेस्ट मैच था इंग्लैंड में, ही इकोनॉमी 6.09 की, एवरेज 44.33 की है, एक मैच है, जाने देते हैं। इवन इन साउथ अफ्रीका वेयर ऑब्वियसली वी नो कि बॉलिंग बॉलर्स को सूट करती हैं कंडीशंस, और की थी सेंचुरियन में 40.83 की एवरेज है। चलो इकोनॉमी 6.09 से नीचे आती है, लेकिन फिर भी फॉर अ टेस्ट बॉलर काफी हाई है, 4.45। Yeah, I ended my piece by saying if Dale Steyn is a CEO, Khurram Shahzad is a 26-year-old intern. Because this is a very unfair comparison on Dale Steyn. उसको क्यों रगड़ रहे हो इसमें साथ? Right? Yeah. Khurram Shahzad, you should be better than this. I do feel like you are a talented cricketer. आप अच्छे cricketer हो यार, मुझे पसंद है bowler वो.
ठीक है, I have batted for him, I've backed him in the past. This was an abject, really poor performance by him. चलो मोहम्मद अली और अब्बास की तो विकेटें भी एक-एक है ना, उनको तो क्या ही उनकी बात करे बंदा, मगर ये 3 for misleading हो सकता है, right? Anyway, like we said, they just didn't target the stumps enough. But can we talk about the fielding now? Because indisciplined bowling on one side. हाँ नहीं फील्डिंग पे आ रहे हैं हम, लेकिन अब एक छोटा सा पार्ट है जो कि ऑब्वियसली क्रिकेट टियर एक्स राइट की भी तो हमने बात करनी है ना। बिल्कुल। तो अभी तुमने वो बात की थी जो हैरी ब्रूकी का एक पे कैच ड्रॉप हुआ था। अब हैरी ब्रूकी जो है ना, ब्रुक्स, he's averaging over 50 in test cricket. Everyone knows that. How much does he average versus Pakistan? Like 100? मैं वही बताने लगा हूँ। So striking at over 87 in test cricket, that's amazing, right? Things change versus Pakistan. 84.72 average है उसकी पाकिस्तान के against, which is the highest against any opposition. And ये नहीं है कि sample size छोटा, he's played 11 innings, he's played 7 matches. पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने थर्ड मोस्ट टेस्ट मैचेस खेले, सो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10 है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 8 है और पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 है, और उस 7 में 84.72 की उसकी एवरेज है, स्ट्राइकिंग एट 93.20 बेबी, 4 सेंचुरियां, मोस्ट अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन। ये तो आपको पता ही है उसने हमारा मुल्तान में क्या हाल किया था, और आप फिर उसका फर्स्ट 1 रन पे कैच ड्रॉप कर देते हो एंड ही गोज ऑन टू स्कोर अ ब्रिस्क 91 रन्स। तो ये, और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो उसकी एवरेज कम है 84.10, जो कि उसकी एवरेज राइज अप हो जाती है टू 84.72 इन इंग्लैंड। सो वो तो धो रहे हमें, सेम ही चीज है तकरीबन। बट या लुक, वी ऑल न्यू दैट बोथ ऑफ जो रूट एंड हैरी ब्रुक लव प्लेइंग वर्सेस पाकिस्तान, और ब्रुकी की वैसे आई वुड लव टू सी व्हाट ही एवरेजेस इन टेस्ट क्रिकेट आउटसाइड ऑफ दोस पाकिस्तान टेस्ट मैचेस। लाइक ओवरऑल एवरेज गिरती कितनी है अगर मैं पाकिस्तान वाले 7 टेस्ट मैच निकालूं, क्योंकि आई वुड इमेजिन इट वुड ड्रॉप बिलो 50। ही इज गुड, ही इज रियली गुड, ही इज एस टियर, ही कुड बी समथिंग ब्रिलियंट समडे। अगर स्पिन खेलना सीख गया तो बहुत बड़ा बैटर बन सकता है। बट you know, Pakistan ने उसके numbers inflate किए हुए हैं, and it's similar to Zach Crawley. They probably missed a trick by not keeping Crawley in the squad for the Pakistan series. वो भी पाकिस्तान को धोता है। But look, you cannot drop a batter like Harry Brook on one. ठीक है, you know how much damage he can do. वो आकर मारता ही है यार, उसका तरीकाकार यही है, that's his modus operandi. And चलो, when Khurram drops Jordan Cox on 57, you know, Cox scores 73, whatever. ठीक है, हो जाता है, right? Sorry, I'm interrupting you बीच में। तुमने ये पूछा था कि पाकिस्तान को निकाल के कितनी हो जाती है, थैंक्स अगेन टू क्रिकेट टियर एक्स। मैं बता देता हूँ, he's played 56 innings, ठीक है ना, अपार्ट जो बाकी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट इसने खेली है, एवरेज ड्रॉप डाउन हो जाती है 47.29 पे पाकिस्तान को निकाल के। Still a very good player, I'm not saying that's bad. It's great, लेकिन पाकिस्तान एवरेज 53.63 पे चली जाती है। Of course, 6 रन उसको मिल गए हैं पाकिस्तान को खेल के सिर्फ एवरेज के अंदर। But look, like I was saying, अब आ ही गया टाइम यार फील्डिंग पे बात करेंगे। फील्डिंग पे कुछ हल्की फुल्की बात नहीं है। There's so many occasions which I remember, but first let's talk about the drop catches. ठीक है, England also dropped 2 by the way, but inconsequential से थे, दोनों खुरम शहजाद के थे in each innings. खुरम शहजाद was dropped on 12 by Gus Atkinson in the first innings, वो 14 पे फिर वहीं पे उसी रीजन में आउट हो गया मारते मारते। खैर खुरम है, उसकी बैटिंग पे तो मैं उसको जलील नहीं करूंगा। And then in that third innings, खुरम शहजाद gave like 3 chances to Jordan Cox. पहला वाला Cox palmed away, that was a drop, he was on 0. Here there was one that went through, one went through, raced or just kind of flew by him. तीसरा वाला तो जॉर्डन कॉक्स ने कोई विकेट कीपर की तरह पकड़ा है, he was you know behind the ball, वो बड़ा ही कोई जबरदस्त कैच पकड़ा था उसने स्लिप्स में। बट just 2 drop catches for England, दोनों खुरम शहजाद के थे, didn't matter। वो एक और दफा खुरम शहजाद को ड्रॉप कर देते तब भी मैटर ना करता, ठीक है। पाकिस्तान के ड्रॉप कैचेस ठीक है, खुरम आया, पहली बॉल कराई है, रिटर्न कैच, Cox on 57 drops him, Cox was 73, 16 रन का नुकसान हुआ, ठीक है, 16 रन डॉली दो। Yeah, and I, like I said, I want to give England full credit when they score 409 runs. वो अपनी अकल के साथ खेल रहे हैं, they didn't go hell for leather के बस attack like England of old. They actually used their brains, and that's why they got a 238 run lead, which was more than enough. We knew कि innings defeat आ रही है, पता था हम सारों को, ठीक है। 171 all out पे confirm हो गया था पाकिस्तान के कि हार जाएगी। 238 की लीड खाने के बाद when England get to 409, we all knew an innings defeat was coming. Maybe we thought they'd bat a bit longer, but they just folded for 135 and 38 or 37 overs, whatever. But you're dropping 2 catches, जिसमें से एक हैरी ब्रुक का है, which is Salman Ali Agha, who should be catching most of his catches in the slip cordon. He's your main slip fielder. He's your stand-in captain. Harry Brook is on 1, right?
अगर आप वहां पे और आई डोंट नो आप 100 रन की लीड खाते हो तो शायद आपके अपना मोराल बेहतर हो जाता है कि कोई नहीं, शायद हम फाइट बैक कर ले, मे बी वी आर इन द गेम. Brooks scores 91. That's 90 extra runs, man. You cannot be doing that. और ये तो catches हैं. The ground और fielding was यार- so abysmal. Oh my god. ये अच्छा, तुमने बात की ना कि हैरी ब्रुक 1 पे कैच ड्रॉप हुआ है. रिमेंबर के वहां पे कोलैप्स आप ट्रिगर कर सकते थे. Yeah. क्योंकि जो रूट और जॉर्डन कॉक्स 4 बॉलों के अंदर निकले. Yeah, तू उसके बाद सोच, अगर- आप हैरी ब्रुक का कैच ड्रॉप कर रहे हो, जो पार्टनरशिप भी लगाता है आगे और फिर 90 रन्स भी और ऐड करता है, तो वो पोटेंशियली अगर वहां पे वो कैच पकड़ लेना तो आप उन्हें ये 409 किया ना, दे कुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 300. Yeah. I mean, they could have. Honestly, Could तुम्हारी have. बात बिल्कुल ठीक है. We would have talked about Khurram Shahzad differently. My piece would have Yeah. been different, right? If he catches the Cox wala return catch and Yeah. Salman Ali Agha doesn't drop root on one, Brook on one, then Khurram Shahzad का piece भी फर्क हो जाता है, पाकिस्तान का शायद थोड़ा टेस्ट भी फर्क हो जाता है. They probably still lose it, but it's a respectable loss. You could Yeah. imagine, ठीक है? Digestible loss. इस हद तक आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट that we're not saying कि यार चलो थोड़े तमीज से हार जाओ, ठीक है? मतलब इस तरह जलील मत हो. It was embarrassing for them, man. Literally. I know that the last time they played at Headingley in 2018 they also lost by an innings, but back in 1987 they won at Headingley under Imran by an innings and they won that series. The first time Pakistan ever won a test series in England, and then they went to win 2 more. 3-peat मारा था आपने. Those 3-peat days are long gone, man. Long gone. 30 years हो गए हैं उसको. की बात They've been करो, 3 एक test drawn match जीतने series. की बात करो. Yeah, 3 drawn series जरूर आई हैं. 2016 को भी 10 साल हो गए हैं यार. That was a decade ago, Sadi. They were number 1 in Test cricket, Pakistan, a decade ago, and how they have fallen, right? Or the fielding is the best example of this because it was so bad. Batting भी बुरी थी, bowling भी बुरी थी, मगर fielding से बुरी कोई चीज नहीं थी यार इस मैच के अंदर. It was like proper schoolboy stuff. Not even putting in dives. अली उस्मान फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है? मतलब क्या सीन है भाई? वो स्वेटर इतने बड़े बड़े पहने में, मैं कहता यार स्वेटर ही फेंक दो बॉल के ऊपर कि शायद बॉल इस तरह रुक जाए, right? Muhammad Ali chasing the ball and not even putting a shift, just watches it just go to the fence. I remember आया मेरे साथ बंदा बैठा हुआ था, Jules, and Jules missed that bit and he was like, did I miss anything? I was like, not really. There was a Rizwan 4 and there was a bad fielding attempt. और साथ वाला मुझे Ben Gardner बोलता है, was it an attempt though? I was like, yeah, you're right. It wasn't even an attempt. और फिर रिजवान पे बात कर लें तो भाई यार तू अपीलें तो छोड़. You run the batter out, you catch the catches. What are you doing, यार? मतलब क्या कर रहा है तू? Club level bro, मतलब club level stuff है. वो रिव्यू हो रहा है, रिव्यू कॉमिकल हो गया है कि वो LBW चेक कर रहे हैं, रिजवान के हाथ ऊपर है, उसकी चेस्ट को लग रही है बॉल, रन आउट चांस है, वो बंदा रिजवान को पीछे से बॉल मार दी उसने. आई डोंट नो कौन था, क्योंकि रिजवान अपील नहीं कर रहा है. क्या सीन है? ये गेम अवेयरनेस की बात करते हो, ये तो यार हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना सादी, हम इस तरह की गलतियां कर सकते हैं यार. हम भी नहीं करते यार, क्योंकि क्या कर रहे हो आप यार. उसके अलावा जो अली उस्मान ने आउट किया था, किसको किया था? जॉर्डन कॉक्स को, आई थिंक. कॉट जो बिहाइंड था ना, फेदर एज थी ना कॉक्स, फेदर एज थी. रिजवान को नहीं समझ आई. नहीं आई. रिजवान ने अपील नहीं की. रिजवान ने सर पकड़ के अली उस्मान कह रहे आवाज आई है मुझे. अपील नहीं की पाकिस्तान में. वो तो हम जहां पे गंदे एम्पायरिंग डिसीजंस की पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे, ये फेवर में किया क्योंकि पाकिस्तान की अपील नहीं थी वहां पे. और भी चीजें फेवर में गई हैं. यही तो मैं कह रहा हूं, कंडीशंस आपको भी बीच बीच पे मिली हैं. कोलैप्स आपका बहुत बुरा था. आप यार सादी, if they had made 225 or 225 to 250 in that first innings, I don't think we would have broken a sweat. इतने ही बन रहे थे मैक्सिमम उस टाइम पे. वो अलग बात है कि the batting conditions did ease for England and the sun was beating down on Headingley later, but मतलब you scored 225 to 250 runs in that first innings, you're like, okay Pakistan, that's all right, that's a decent effort. क्योंकि कंडीशंस इस तरह की थी कि आपको यार चलो आप इतने अच्छे तो हो नहीं, आपने चलो 225 250 मार दिया, फाइट दिखा दी. बट वहां पे यार मतलब क्या, एक अब्दुल्ला का 61 और एक अली उस्मान 5 for 95 in 24 overs, which again you were right to point out, full marks to him, maiden fifer, first time bowling in England. बहुत बहुत मजा आया. हेडिंगली में कोई after कुछ, I was reading Mazhar Rashid's stat, correct me if I'm wrong, कुछ after 77 years कोई visiting टीम के स्पिनर ने 5 for लिया. तुम सही कह रहे होगे. मैंने साथ ही ज्यादा ट्विटर देखा नहीं, मैं सिर्फ अपनी चीजें पोस्ट करता. I was just running around everywhere. This is the first day I've actually gotten a breather. तुम्हारे लिए भी तो मैं रिले भी तो शूट कर रहा था, जो तुम अब कभी ना कभी लगाओगे. ओह, इतना काम दे दिया यार हमने. काम नहीं दिया, मगर वो बंदे रेडी करने होते हैं ना जानी, वो उसमें अलग मेहनत लगती है.
समझा वो कर एक हाँ पता है मुझे। but khair point Hmm. is ke I again will applaud him 5 for 95 in 24 overs yes he was leaky वो जो स्वीपों पे चौके खाना शुरू हुआ हैरी ब्रुक्स से मुझे याद है एक टाइम पे राइट Hmm. बट चलो मेडन फाइफर फर्स्ट टाइम बॉलिंग इन इंग्लैंड अभी नया है टीम के अंदर नॉट अ बैटर बैड फील्डर एज वेल बट ही बोल्ड वेल राइट I just don't understand कि पाकिस्तान मतलब किस तरह की बॉडी लैंग्वेज लेकर उतरी थी कि फील्डिंग में आप कसम से। एफर्ट ही नहीं डाल रहे. It was proper just amateur level stuff, amateur hour. Really bad. Like I said, बैटिंग बुरी, बॉलिंग बुरी, फील्डिंग शायद सबसे बुरी थी यार. वो वहां पे इंग्लैंड ने बड़े अच्छे अच्छे कैच पकड़े हैं. वो रूट पता ने है- जो लेग स्लिप पे पकड़ा है, एक और था जो ट्रैप सेट किए हुए थे वो yeah, अजान और yeah. साउथ के लिए. I think the Jordan Cox catch was brilliant. If you look at that ball, Really good. it was past him. He's a wicket keeper. That's why he catches that. उसकी टेक्निक देखो तुम किस तरह उसने स्लिप्स पे वो कैच पकड़े, right? हाँ। Good stuff. अच्छा खैर पाकिस्तान की ये मैं ना चलो फील्डिंग तो देखो बैटिंग आपकी स्किल्स पे है ठीक है आपकी आप नहीं उतने स्किल्ड नहीं हो जितनी ऑपोजिशन अच्छी बॉलिंग करा रही है आप आउट हो गए आई लेट दैट गो बॉलिंग आपसे नहीं हो रही ठीक है आप एफर्ट मार रहे हो नहीं हो रही है अच्छी नहीं हो रही है डिसिप्लिन्ड हो आई लेट दैट गो एज वेल व्हाट आई कांट लेट गो ऑफ इज व्हाट यू पुट इन ऑन द फील्ड ठीक है Yeah. आप गंदे फील्डर हो सकते हो लेकिन आपने एफर्ट तो 100% मारनी है ना जब आप आओगे इस बॉडी लैंग्वेज के साथ कि यार मतलब मुझे ऑनेस्टली इस तरह लग रहा था कि उनका खेलने का दिल नहीं कर रहा और जब Yeah. ये वाला एटीट्यूड आपको रिफ्लेक्ट करता है ना तो फिर आप कहते हो यार ना खेलो इससे बेहतर है ऑनेस्टली बाकी या किसी और को आने दो आपको रिप्लेस करने दो गिव इट हिज ऑल ऑन द फील्ड क्योंकि जब आप किसी भी नेशनल टीम की आप जर्सी पहन रहे होते हो ना तो एक रिक्वायरमेंट होती है आपसे एंड दैट्स टू गिव योर ऑल Yeah, you're representing your country. and if you can't do that you're surplus to requirements you can leave Dude, you could be losing the game. You could be getting hammered. Put that dive in, right? put that effort in na हाँ, कि यार मतलब मैं Why are you मैं not diving किसी for the तरह- ball? Why are you trying to play football? Why are you just letting the ball go by? चलो यार बॉल तुम्हें बीट कर जाए तू डाइव तो मार लेना यार. डाइव मार ले यार मैं क्या एक था? रन रोक लूं शायद वही डिफरेंस हो Deplorable in the field, honestly. Horrible. And that was Horrible. the part that actually pissed me off because I knew कि पाकिस्तान है toast. I knew that on day one, honestly. जब 171 पे हाँ, all out हुए. मैंने कहा मैच तो हार गए हैं. अब देखते हैं मुझे तो कितना जल्दी ऑनेस्टली हारते टॉस हैं. से पता था टॉस इंग्लैंड जीता ना आई वाज लाइक या वी आर डन Today was supposed to be day 4 of this test match. Right? अभी चल रहा होता और ये 2.5 दिन भी नहीं 2.25 because of rain. Otherwise, overs wise, less than 2 days. That's Less than how 2 bad days. Pakistan were. And an innings of 103 runs is not even like an innings in some runs. It's a Yeah. lot. 103 रन से आप टेस्ट मैच हारते हो वो भी काफी बड़ी हार होती है. ये innings and 103 runs है. Right? Like it's that bad. But anyway, I want to talk about Pakistan's batters towards the end. I feel like we should give some airtime to England's guys. वो बहुत अच्छा खेले. ठीक है. यस शुरू में दिया तो है आई थिंक हैरी ब्रुक की भी बात होगी जॉर्डन कॉक्स की बात करनी है तो कर लो अब रूट की और हम क्या बात करें ब्रो Yeah, I'll quickly go over the guys. I suppose Ollie Jordan Robinson Cox, and Josh Tongue shared ball yeah, that was fun. Like I really enjoyed. दो तीन moments थे. एक तो when they split the ball and I asked like Rory कि उसने तस्वीर लगाई थी वो प्रेसर पे गया था मैं तो तुझे पता प्रेसर से दूर रह रहा हूँ. उससे मैंने पूछा कि यार how did they manage to do that so cleanly? And he was like, oh, they went to the curator who probably had a toolkit and they had options. मैंने कहा okay. तो वो it looked like a brain. Right, like, but समझ नहीं आई ये क्या बॉल है मगर that was fun. I liked that little, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं उसको. But बीच में एक बॉय था जिसने अपने पॉइंट्स गिरा दिए थे और वो सही शुगल लगता रहा है काफी. The anthem was, I know a lot of people are pissed off, but I thought the anthem was sung really nicely. बंदी ने बड़े notes hit किए हैं, ठीक है. अच्छी चीजें थी बीच में इस तरह की weird comical सी चीजें. But coming to the batting of England, क्योंकि there were 4 half centurions, right? And I think all 4 were really, really good. Joe Root in his 66th test as captain. Where's the number 66 as well? Yeah. Scored 66 runs. Brilliant to watch. In complete control. Hometown hero. Yorkshire का ये इधर ही खेलता है Headingley में. And I think एक तो Joe Root will score 10,000 runs in that area, right? वो जो backward point of third man wala area. He continued to milk Pakistan over there. And every time they straight down his bags, he just flicked them away, for runs. Out bhi is tarah hua, but those 66 runs were quality. And he looked like, the sort of guy who might break Sachin's record, honestly. Like, that's how good Joe Root looked in this test match. Jordan Cox dropped on 57, but scored 73. Look, Cox ki main ek baat karunga, 2 baatein karunga. Ek to, I like what I saw in terms of commitment in the field, and then anything on the pads he put away, but punchy player.
अगर तुम सारी शॉट्स देखो काफी पंची प्लेयर है. Like Yeah. that's his kind of modus operandi. And this is someone who has only batted at first drop in his entire red ball career once before. His second innings at first drop thi. So I mean that augurs really well for England or Jacob Bethel as competition, I suppose. But Cox ke 73 were very refreshing. I did not expect that कि ये चलेगा और ये चल गया. So full marks to him as well. Harry Brookie dropped on one, had a chancey innings at times, but फिर वो मारना शुरू होता तुझे पता ही किस तरह मारता है. मारता ही है. फोरहैंड स्लैप्स आती है ना जब टेनिस खेलने लग जाता है वो आपके साथ. तो जो खुरम को पड़ी भी है इस तरह की. आई थिंक खुरम ही था या अली था. एंड देन आई मीन आई थिंक हैरी ब्रुक आल्सो those sweeps versus really ugly sweeps versus Ali Usman, those were freebies. He late cut the ball really well. उसने काफी fit late cuts मारे इस मैच में. Lots of runs in those regions or that region. And Dan Lawrence was someone who had scored 500s in the county championship. He was on the team or back in the team on merit and didn't score another 100. But those 51 runs were really handy. एक और partnership लग गई. गंदा dismissal था. Threw his wicket away, but you take those 51 runs on your in your comeback test match. I thought he was good. Right, तो ये चार बैटर्स जो थे, they did a good job, got England to 409, and that's game set match innings defeat थी. Bowling की बात कर लें अगर, तो यार who do you want to talk about first? Because you know there are two guys. I think दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं. दोनों ने जब बॉल स्प्लिट कर लिए तो हम उनकी बातें क्यों नहीं स्प्लिट कर सकते? Yeah, नहीं, I mean Josh Tongue, I feel कितनी दफा हम कह चुके हैं ये कि his best ball is great. But he can spray it around. He can be erratic. But Mookie challenges me on this. Mookie always says कि नहीं उसमें है discipline, वो अच्छा है. I will give you this. He's an ever improving cricketer. Josh Tongue, every time I see him, next time I see him, I like him a bit more than the last time. Awkward action. We've talked about it. He can crank it up. He was the fastest bowler on display at Headingley, right? He was on a hat trick at one point. वो जो इसने, he obliterated Salman Ali Agha's stumps. वो बेलें उड़ती भी गई हैं. And उसके बाद he destroyed Ali Usman's shin. वो on a hat trick हुआ है, but 5 for 46 in 9.1 overs in his first dig or outing, and then 3 for 43 in 7 overs, जिसमें वो पहले 2 ओवरों में ही 3 विकेटें निकाल गया था. वो दस्ती गिरी हैं, ठक. But overall, you look at the test match that he had, and that's 8 wickets for what, 89 runs in 16.1 overs. You don't expect him to be economical. You want him to take wickets, and he took wickets. So that's job well done. Pakistan do not have a Josh Tongue, and England's Josh Tongue gave Pakistan a proper lick. सही गीली वाली, ठीक है, की है, जरीली की है. और उसके बाद before I come to Aussie, I will say this कि in the first innings I thought Jofra is in 100 mode, और पहले 3 maiden के बाद Jofra पिटा था थोड़ा सा, none for 26 in 9 overs, and I was like Jofra पे सवाल फिर उठ जाएंगे. But Jofra ने फिर आकर या थर्ड इनिंग्स में आकर, खैर उसमें जोफ्रा की विकेट तो मैं कहूंगा 3 लिए ना उसने. विकेट एक ही, मगर वो विकेट एक ही लिया. नहीं इमाम तो फ्रीबी होता है ना, तो उसकी विकेट तो मैं कंसीडर नहीं करता. अजान वाली विकेट ले ली उसने. अब आज को क्या मैं कहूं, वो वैसे वो भी रूट की विकेट है. ठीक है, वो लेग स्लिप वाली रूट की विकेट है. बट जो रूट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इज रियली एक्साइटेड टू बी कैप्टन अगेन. ही सेज ही इज अ बेटर क्रिकेटर नाउ. तो वो उस तरह जो हमें लग रहा था ना कि ही डजंट लाइक टू कैप्टन, उस पे बोझ है. मे बी दैट्स फॉल्स. मे बी ही इज गोइंग टू एंजॉय रिलिश दिस अपॉर्चुनिटी. अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने थोड़ा सा टफ ऑपोजिशन आगे, फिर मैं पूछूंगा इस अगले एशेस में बात करेंगे जब ऑजीज आएंगे इंग्लैंड. खैर I had negative notes on Jofra in this game after that none for 26 in 9 overs right in the first innings. Third innings में आकर जब आते सार early burst of wickets लेकर दिए न्यू बॉल के साथ and ends up with 3 for 50 in 10.3 overs. I feel like you still can use him in test cricket. They'll just have to decide how. हर मैच नहीं खेल सकता, कौन से वाले खिलाने हैं, किधर खिलाने हैं. बट जो ये बंदा चाहेंगे ना सादी, इंग्लैंड, and fitness prevailing of course, he should play every test match for England. That's probably Ollie Robinson. Maybe not on a flat deck, but everywhere else you play Ollie Robinson. True. He is a one-trick pony, but that is a really good pony, man, or a really good trick. Really good trick. He's a bit of a unicorn, right? Or वो मतलब a true master of one. First ball of the series. First ball. He pins Azan Awais LBW. पहली बॉल. मैंने कहा लो भाई, 6 साल बाद आई पाकिस्तान खेलने इंग्लैंड में, पहली बॉल पे अजान अवैस भाई आउट हो गए. A good ball, nip backer. Azan did not know what to do with it. And then soon after, Shan Masood falls in a similar fashion, right? वो भी LBW हो जाता है, completely off balance. And then you have Saud Shakil, who didn't review, gifted or Robinson his third wicket, but that was a hat trick of LBWs for Ollie Robinson. Uske baad the way he set up Abdullah Shafiq and cleaned him up, that was brilliant. Lovely stuff. That Ollie really took that wicket. वो उसकी wicket है, समझ रहे हो तुम? उसकी तकरीबन सारी विकेटें थी. And then खुरम, अजान वाली भी उसकी विकेट है, शान वाली भी उसकी विकेट है, अब्दुल्ला वाली भी उसकी विकेट है, साउद वाली अंपायर की विकेट है, और साउद वाली अंपायर की विकेट है. But खुरम को फिर बाद में आउट कर he completed his fifer. Saadi, at that point
he had bowled in 40 innings and he had his 5th 5-wicket haul in Test cricket. That is quite ridiculous. Yeah. At the end of this game, because he took 5 for 51 in 18 overs, so he's economical and incisive in that first innings. 5 for 51 in 18 overs, followed by 3 for 29 in 11 overs in the third inning. So that's what? 8 for 80 in friggin' 29 overs? Matlab, under 3 runs an over, 8 wickets in 29 overs. That is ridiculous. He deserved the player of the match award because 100%. Tang ne bhi wicket liye 8, but Ollie Robinson sets it up. Pakistan fold for 171 because Ollie Robinson ko wo khel hi nahi paaye. They did not know how to cope with him. Hooping the ball around, nipping it off the deck, not missing his line. Crazy accuracy, right? 6 for 2 पे ही या हाँ 6 for 2 पे ही खत्म हो गई थी ना पाकिस्तान. नहीं, पहली बॉल ऑफ I think ना ब्रो think जितना भी आप कर लो ठीक है. अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेला है. इमाम इन्हें ट्रस्ट करता ही नहीं यार सही नहीं. ये 42 रन्स इसने इस टेस्ट में बनाए हैं. ये 42 बोनस रन्स है. खैर उस पे मैं आऊंगा, बट ऑली रॉबिन्सन यार, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द विकेट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ फाइफर के अंदर देयर 4 फ्रंट लाइन बैटर्स इन देयर, राइट? एंड इफ आई लुक एट हिज करियर now, after what 22 tests, I think, or well 41 innings in Test cricket, he's taken 91 wickets in Test cricket. That's 20.86 ki average. Yeah, less than 21 apiece is what he's taking his wickets at. I think we wali baat hai. If England need a new ball bowler, someone who leads the attack, I feel like if his fitness prevails, he can be that guy. And there are very few sort of surfaces जिस पे मैं Ollie को ना खिलाऊं, क्योंकि he also offers control, right? वो assist भी कर सकता है विकेट, वो pressure डालेगा. I think he thoroughly deserved this player of the match award. 100%. This was England's test, but more importantly, I feel like I'll remember this test match as the Ollie Robinson test match. Because he completely floored Pakistan and he was amazing. It's weird he's back, and the way he's been back, मतलब दो जो टेस्ट मैच जीती है इंग्लैंड इस समर, दोनों ऑली रॉबिन्सन ने जिताए हैं. वो न्यूजीलैंड वाला भी ऑली रॉबिन्सन ने जिताया हुआ है, ठीक है? So big fan. I feel like he really owned Pakistan, and I also wrote on Ollie Robinson first day पे मेरा जो piece था वो ऑली पे था, right? And I feel like England, if they can rotate their seamers correctly, like keep them fit, attack में variance काफी है. Spinner नहीं है, वो एक अलग discussion है. They don't have a spinner. Like if Bash and Rehan are options, then it's not looking good. But I think full credit to Ollie Robinson, star of the show, and the entire bowling attack. And England, though, just the way they played with brains and the way they batted and fielded, सब कुछ अच्छा था. उतनी खराब पाकिस्तान थी. Complete polar opposites of each other, right? But चलो, तुम इमाम की बात कर रहे थे. मैं नहीं करना चाहता. होगी बात. इमाम को मैं देख रहा था. इतना ही एयर टाइम दो. मैं अपने साथ वाले बंदे को जूल्स को कह रहा था, मैंने कहा वॉच हिम गो आउट चेसिंग द बॉल, ठीक है? एंड देन आई वेंट फॉर माय कमेंट्री स्टिंट. मैं ये बोलकर निकल गया. इमाम शुरू में एजी था, कतरियां निकली हैं, मगर फिर इमाम अच्छा खेलने लग गया था यार. फिर से वो वाला फिर से बेवकूफ बनाया जिस तरह से वो तब वेस्ट इंडीज में नहीं बनाया था. स्ट्रेट ड्राइव आई है, कवर ड्राइव आई है, दोस कट शॉट्स दैट ही इज सो गुड एट. दैट्स हिज बेस्ट शॉट, राइट? इमाम की तुम अगले वाले क्रिकेट एक्स के एपिसोड के लिए देख लेना कि कट शॉट पे कितने रन्स हैं. बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है. अभी 42 पे आप पहुंच गए हो. He injured himself in between. I don't know what happened there, क्योंकि आपको ग्राउंड के अंदर इतना पता नहीं चल रहा होता. Was it a cramp? Was it something else? I don't know. But all of a sudden I'm thinking, yaar, Imam has weathered the storm. It's a really good partnership with Abdullah Shafiq. Is this the moment where he finally convinces people, or convinces me at least? Yeah, It wasn't. वही dismissal. फिर chasing at the ball, edging it into the border in trademark fashion. भाई आप 42 पे बैटिंग कर रहे हो यार. Trademark. और फिर बाद में अभी वेस्ट इंडीज में यही हुआ था ना. Got out chasing and then bounced out. He got out chasing for 42 and then on duckling he was bounced out. पता था इंग्लैंड को, होमवर्क कर आए हुए थे. वही सेम डिसमिसल यार. फिर वही चीज, वही बकवास. और अभी मैं क्रिटिक का ट्विटर देख रहा था, एज इन मेरी फीड पे आई हुई थी उसकी ट्वीट. The most damning statistic that Imam Haq has, I saw that कि his average in draws is 70 or touching 70. His average on result oriented pitches, जहां पे रिजल्ट आता है in test cricket, जो अब सारी होती है by the way, उस पे under 30 है. And that makes complete sense to me because all of his runs have come on those flat decks जहां पे draw हो रही है game. इसने किया क्या यार result oriented pitches पे? He never really comes good as literally सिर्फ और सिर्फ पिंडी, outside पिंडी 28-29 की एवरेज है इसकी, less than 30. अब एक टाइम पे ऐसा था, I don't know if that remains or not. अभी भी है. Yeah, अच्छा अभी भी है. Point is कि if you know in an age or era where test cricket में results ही आते हैं और you're curating surfaces जहां पे result जरूर आए, World Test Championship का दौर है. Draws aren't going to happen anymore. No one's going to be playing for draws or curating surfaces that way. You're averaging 70 over there where it doesn't even matter जहाँ पे पूरी दुनिया score कर रही है. When there's a result-oriented pitch, you're not even averaging 30. Away from home को छोड़ दो, मैं तो इसी पे लौट गया हूँ.
नहीं ये तो हाँ, और दोनों होम एंड अवे की ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी 28-27, लेकिन वो क्या फर्क या था। मगर इसमें भी तुम ये याद रखो कि ये रावलपिंडी टेस्ट मैच हारे थे इंग्लैंड से, जिसपे हाँ। फट्टा था और उसमें इमाम का कोई 120 था। Yeah. तो वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पिच पे आए हैं रन्स और वो नहीं है रिजल्ट ओरिएंटेड पिच। वो इंग्लैंड ने वो बनाई थी रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बाय द डिक्लेरेशन। सो आई वांट इमाम बिंड. If Babar is to come back, I want Shan to Yeah. open, Abdullah to go to 3, and Babar can bat at 4. I'm done True. with Imam ul Haq. I think True, even if he 100%. plays again in this series, Sadi, this 42 will not be bested. I don't think so. Yeah. ये बेस्ट इनिंग्स थी इसकी अच्छा इस सीरीज की. अच्छा खैर इमाम को तो हम आई थिंक द पूरा पाकिस्तान ही इज डन विद इमाम उल हक. I mean, और it's time काफी to अरसे take से हम that कह रहे horse to the old town I- road, man. Take I him to that think- road already. आई थिंक इमाम बहुत लकी है यार कसम से. बाबर इंजर्ड ना होता तो शायद वो ना खेल रहा होता, या शायद Yeah. खेल भी रहा होता. मैं कुछ कह नहीं सकता. पाकिस्तान जिस तरह की सिलेक्शंस करती है. Was Shan fine? Had he recovered? I don't know about आई that. डोंट नो ब्रो. शान ने भी मुझे डिसअपॉइंट ही किया Disappoint ही है. शान भी फारिग. मुझे अजान ने भी अब डिसअपॉइंट करने लग गया यार. आई वाज लाइक Again, डकलिंग. I चलो was पहली still- इनिंग्स में डक आ गई, उसकी बहुत अच्छी बॉल थी. पहली दफा आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, ठीक है. फिर दूसरी इनिंग्स में भी 9 यार वो थोड़ा सा. पता है, चलो मैं अभी उसे तो रोप दे रहा हूँ I'll- लंबी. I'll give him a bit of a pass. I think he was kind of good at short leg, honestly. हाँ, England kept him yeah. busy, मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था. He has scored a lot of runs as an opening bat in first class. He's here on his on merit and he's earned his stripes. But I have a bit more time for Azan. I agree कि it's been but- quite underwhelming. But हाँ. वो पता है, he hit that ball well, जो leg slip पे catch हाँ, हो गया. लेकिन यू हैव टू बी. आपको पता है वहां पे फील्डर है यार. Ah, खैर उसके अलावा यार आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर सलमान अली आगा एंड सऊद शकील एज वेल. Yeah, Sudi Shack, I don't know why he didn't review that in time. He should have. पता नहीं confused था या sweater में गुम गया था अपने. Yeah, look, no runs from him either, right? 5 बनाए और फिर कितने 15 पे आउट हुए, ऐसा कुछ. हाँ. I don't remember now. but 14 पे. बट क्या करूं मैं. एक नहीं, तो कुछ अच्छी नहीं. एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी. दैट्स इट. Yeah, और एक On इसने right कोई ऑफ साइड पे अच्छा चौका मारा था एक बीच में, मुझे याद है. मैंने कहा ओके साउथ आई एम हियर. बट पता है, even if he survived that LBW dismissal, Ollie Robinson नहीं खेला जा रहा था. Ollie Robinson had Yeah. Pakistan's batters like on a string, like on a yo-yo. खेल रहा था वो पाकिस्तान के बैटर्स साथ. इससे ज्यादा रन्स होने भी नहीं थे अगर ये बच भी जाता, क्योंकि he just looked out of sorts. Maybe it's the thing that he's coming back from injury, but Saud Shakil hasn't scored runs in Test cricket for a long time. It's been a hot minute, and that's the Yeah. same case with Rizwan and Cousin Sal. कजन सैल एंड रिजवान की जो शॉट और उसकी गेम अवेयरनेस की तो हम पहले भी बात करते हैं, क्योंकि वो शॉट तो वो बुमराह वाली शॉट थी. वो Yeah, याद वो क्या था? करवाइए. आते सार इसने तुझे याद है क्या मारा था? हाँ हाँ, वो- एग्जैक्टली वही शॉट थी. और और मैं वही confused हो गया था यार. मैंने कहा ये क्या हुआ है यार? What are you doing, Rizwan? और फिर वो चौका भी नहीं वही हुआ था. वाली- चौका भी नहीं हुआ था कौन उस सा? पे. वो जो नहीं, अजीब सी out- शॉट मारी थी. और मैं जिस पे आउट हुए उसकी बात कर रहा हूँ. अच्छा नहीं, एक तो LBW तो अनलकी हुआ ना 12 पे वहां पे. नहीं मैं सेकंड इनिंग्स में जो ब्यूटीफुल शॉट मारी है ना इसने. ओ नहीं, मैं फर्स्ट इसकी इनिंग्स की बात कर रहा हूँ. अभी बैटिंग करने आया और इसने वो पता नहीं पसली शॉट मारने की कोशिश की, क्या कोशिश की है. बॉल इन द एयर गई थी, ठीक है. सेकंड इनिंग्स में तो मुझे थोड़े यूजलेस रन्स लग रहे थे उसके. ऑनेस्टली आई एम नॉट गोना टू लाई. आई डिड थिंक टू माय सेल्फ कि चल रिजवान एटलीस्ट बैट योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ फॉर्म बिकॉज़ पाकिस्तान विल नीड यू. बट वही मतलब अली उस्मान वाज शील्डिंग रिजवान एंड वही ना, मैं मानता वही हूं कह रहा हूँ. एक तो वो जिस बॉल पे जिस तरह की शॉट पे आउट हुआ, ठीक है. और दूसरी चीज अगेन वही मसले टेल एंडर को दे देते हो आप फर्स्ट बॉल पे सिंगल लेके. चलो पता है, कहाँ है क्या है. I don't think Ali Usman is a batter. I think the 22 first class average is very misleading. But माना यार नंबर 8 बैटर है, अभी पूरी वो वाली टेल शुरू नहीं हुई, ठीक है, whatever. तो खुरम शहजाद को भी तो इसने दिए. Exactly, यही तो मैं कहना हाँ. चाह रहा हूँ कि खुरम शहजाद को भी. खैर वहां पे कई सिंगल्स रिफ्यूज इसने किए हैं. I saw that. लेकिन पहली बॉल पे क्यों सिंगल लेके दे रहे हो यार. Oh, कितनी दफा हम एक ही बात करें यार. इरिटेटिंग नाउ. I wouldn't want to give him too much credit for those 41 runs, but I did think to myself कि चल यार मैच तो खत्म हो गया, तू at least please bat yourself into some form. Keeping में वही वैसे तो गलती नहीं थी, मगर वो गलतियां ही है ना जो अपीलें कर रहा है. तो बॉल पकड़ यार, तू आगे खड़ा हुआ है स्टंप्स के, you got to catch these, you got to run that batter out, you don't have to just appeal all the time. Whatever. Rizwan disappointing. Very disappointing. And Cousin Sal 41. Cousin Sal तो I'm kind of losing my patience with Cousin Sal. Same. मैं इसको देख रहा था, आया ना ये बैटिंग करने,
फर्स्ट 2 डे से मैंने जरा ज्यादा आंखें खोली हुई थी, थर्ड डे पे तो था ही कितना कि मैं आंखें खोलता, राइट? Yeah. बट मैं देख रहा हूँ यार बड़ा स्ट्रगल कर रहा आते सार, देयर इज दिस रियली ऑकवर्ड लुकिंग फ्लिक शॉट दैट ही प्लेज फॉर 4, रियली ऑकवर्ड, राइट? और फिर मैं देख रहा हूँ कि इसका एक ही स्कोरिंग रीजन है, ही इज ओनली स्लैशिंग एट द बॉल एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। कजन सैड हल्की सी बॉल अंदर आती है, आउट हो जाता। बहुत हल्की सी आई थी सादी, मुझे ज्यादातर तो सीधी लग रही थी, आई है थोड़ी हल्की सी, बट व्हाट ही रियली वाज अनडन बाय वाज पेस। ये लेट था, तेज था बहुत जॉश टंग इसके लिए, वो किलियां गई हैं उड़ती हुई, उसके बाद भाई सेकंड इनिंग्स में वो फिर अनडन बाय पेस। कितने इसने यही 15 रन बनाए होंगे, 5 रन बनाए होंगे शायद इसने सेकंड इनिंग्स में। सेकंड में 4 बनाए थे, पहले में 21 बनाए थे। वेरी पुअर। और ऊपर से द इमेजरी ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ सलमान अली आगा, वो एक अलग चीज चल रही थी इस टेस्ट मैच के अंदर। और फिर आके यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी he looked completely at sea. I wasn't there to attend them, but I saw some of the stuff. नहीं मजा आया। नहीं मतलब वो शेबी की बात याद आ जाती है ना, वो जज्बा, वो दिलेरी, वो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, हार गए। और बाय द वे, आर यू सीरियसली कंप्लेनिंग कि एक प्रैक्टिस मैच कम है? आपको एक भी नहीं मिलता आजकल, यू गाइस स्टिल गॉट वन। कंडीशंस भाई, इमाम यहाँ पे खेल के नहीं गया, सारे खेले गए, पता तो है। शान अब्दुल्ला, 4 वॉर्कशायर के प्लेयर्स थे पाकिस्तान के पास, शान अब्दुल्ला, साउद और इमाम। फिर इमाम ने तो बड़ी सेंचुरियां मारी थी। खुर्रम शहजाद ने नहीं खेली काउंटी, खुर्रम शहजाद ने नहीं खेली काउंटी, मोहम्मद अली ने नहीं खेली काउंटी, मोहम्मद अब्बास तो है ही काउंटी लेजेंड। या वो तो खैर चलो, अब्बास को तो मैं पास दे रहा हूँ, मैं अजान को भी पास दे रहा हूँ, अब्बास को भी पास दे रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला को भी पास दे रहा हूँ यार। अब्दुल्ला बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। इफ देयर इज, देखो, people might look at the scorecard and think Ali Usman is Pakistan's best performer because he takes the 5 for 95 in 24 overs, but I actually thought Abdullah Shafiq innings बहुत ही प्यारी। It didn't last long, 61 runs. He does have a knack to go big once he gets to those scores. यहाँ पे 50 कर out हो गया, but look, yeah, those on drives were just immaculate, so good. They were so good. Jared wrote a piece on the on drives alone. इतनी अच्छी ऑन ड्राइव्स थी, फिर स्क्वायर ड्राइव्स भी अच्छी मारी, देयर वर सम रियली गुड फ्लिक्स इन देयर। एंड व्हाट I'd like to appreciate about Abdullah Shafiq, he scored 61 and 15 in this test match, 76 runs. I don't think anyone from Pakistan scored more runs than Abdullah Shafiq, but he comes into bat when Pakistan are 2 down for 6, मसले हुए हैं, and this is his first ever test innings in England, and he scores that very aesthetically pleasing half century, very good 61 runs, gets done by Ollie Robinson who sets him up, और वो Ollie की स्किल भी है वहां पे। अगेन, जहां मैं पाकिस्तान की बुराई करूंगा, मैं ये भी बोलूंगा कि इंग्लैंड बहुत अच्छा भी खेली है, पाकिस्तान जस्ट फोल्डेड, वो अलग एक डिस्कशन है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं फाइट दी, बहुत खराब खेले, मगर इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है। बट अब्दुल्ला, आई थिंक him and Ali Usman would, if we were doing ratings, those were the only 2 people I would give a passing grade to. That's it. यही है, ऐसा ही बस, बाकी सब फेल है भाई। और आगे क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी यूजुअली मैं और तुम कहते हैं ना कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, पता ही नहीं है ब्रो। बाबर comes in for इमाम, बस बाबर को इमाम की जगह लाओ, that's it. I don't even know how to fix the bowling attack, because it's not like I have heaps of like confidence in Amir Jamal and Ubaid Shah. ठीक है, you probably need an enforcer, but Ubaid Shah को मैंने थर्ड स्पेल में देख लिया था वेस्ट इंडीज में, हाँप रहा था वो यार। वो पता नहीं ना, अब लॉर्ड्स है, कैसी पिच है, क्या होता है, डू यू प्ले अ स्पिनर, क्या करो। अच्छा, अगर स्पिनर खेल भी रहे तो I'd probably play Sajid again. Yeah, again, no disrespect to Ali Usman. I just feel like Sajid Khan after Mohammad Abbas is like the best bowler Pakistan have, and one of the better cricketers Pakistan have in the squad, looking at like all of the dearth in performance. Because Goffy मुझे कह रहा था कि यार टैलेंट तो है, मुझे पता है टैलेंट है, I've been coach of Lahore Qalandars, ये लड़के भी टैलेंटेड है। मैंने कहा हाँ है, मगर वो शायद प्रोफेशनलिज्म नहीं है उस लेवल का, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एप्लीकेशन है ही नहीं, गेम सेंस है ही नहीं। प्रोफेशनलिज्म की तो कमी है ना पूरे पाकिस्तान में, और स्पेशली क्रिकेट में, ये तो आपको पता ही, आप PSL उठा के देख लो। बट चलो, शान तो है ना इस टीम में, he is one guy who has that nailed down. I'm sure these guys like Babar Azam वगैरह have their processes. They do have their processes, वो एक अलग बात है, but to inspire them कि यार तुम at the end of the day अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, कुछ जज्बा दिखा दो यार, कुछ। ठीक है, हम सारे एग्री करते हैं वो वाली क्वालिटी नहीं होगी, टेक्निक में नहीं होगी, आप अपनी 100% दे दो ना, दैट्स ऑल वी आर आस्किंग फॉर। इस तरह की परफॉर्मेंसेस पे देखो, आपका अब मुझे तुम्हारे वाले वो इंटरव्यू याद आ गया, पॉडकास्ट याद आ गया, जहां पे तुमने बोला था पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इररेलेवेंसी, राइट? या इसी तरह टेस्ट मैचेस हारते रहे,
क्रिकेट खत्म हो जाएगी, कोई नया जो बच्चा है वो इंस्पायर नहीं होगा। अभी तो चलो बाबर की वजह से हुए होंगे ना हमारे नए आने वाली जनरेशन, जब ये क्रिकेट का ये हाल कर दोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, नए प्लेयर्स नहीं आएंगे आपके पास, नए वैसी PSL is going down the drain, everything in this country related to cricket is going down the drain. You need to fix this ASAP. ठीक है, बाकी चीजें आप मैनेजमेंट साइड पे छोड़ दो, आप अपना तो 100% दे दो यार। वो अभी That's all what we're asking for. अभी फील्डिंग कोच फायर हुआ था, किसी ने कुछ बात नहीं की उसके बारे में। अब शायद फील्डिंग कोच ढूंढेंगे, या मंसूर अमजद भाई है, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है, मंसूर अमजद भाई जो है वो उनकी गेम अवेयरनेस भी देख लो, वो भी साइड स्क्रीन के आगे से गुजर रहे थे जो डिस्ट्रैक्ट हुए आगा और रिजवान। But anyway, like, honestly, all things said and done, you're losing, you're getting hammered, you're getting an absolute spanking. Put in that dive, right? Like, that please. is it. अगर आप इस तरह की फील्डिंग करते हुए पाए जाओगे ना, तो फिर तो मतलब, if like I said, if fans are feeling disenfranchised, if they're feeling detached, whatever, if they feel like they're done supporting this team, I can completely understand that this team is not giving them any reasons to support them. वेस्ट इंडीज में आप किस तरह जीते हो? एक ही वही तरीका जो आपको आता है जीतने का, जब कोई थोड़ी बहुत टर्न कर रही हो, वरना आप जीत भी सकते हो कोई मैच। शायद मे बी I can say this कि there is maybe a 50% chance that Pakistan get a test win on this tour, because I think England भी एक टाइम पे आकर गलतियां करेगी। अभी ये बहुत अच्छा खेल गए हैं, इंग्लैंड से भी कुछ गलतियां हो सकती है। इफ लॉर्ड्स इज अ लॉटरी पिच, व्हिच आई डोंट थिंक इट विल बी, बिकॉज़ डिमेरिट पॉइंट उन लोगों ने खाया हुआ है आफ्टर द न्यूजीलैंड टेस्ट मैच। उन पे बहुत एमसीसी के क्यूरेटर्स पे तनकीद हुई है, दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। आई डोंट थिंक इट विल बी अ डायबॉलिकल लॉटरी पिच जहां पे सीमर्स आर इन प्ले, बट पाकिस्तान probably need that right now, because if it's anything else, I don't see how they win. Maybe you know, अगर spinners in game में आ गए तब शायद। honestly इस विन की बात बाद में, honestly ठीक है, I know कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, इट्स अ रिजल्ट बेस्ड बिजनेस, आपको जीत चाहिए, लेकिन द लीस्ट यू कैन डू इज पुट इन दैट एफर्ट, और फैंस को वो आप दिखा दो कि यार हम यहाँ पे खेलने आए हैं, हम शायद उनसे बेहतर ना हो लेकिन हम खेल तो सकते हैं ना। सो एटलीस्ट इतना कर दो तो आई थिंक बाकी सारी बातें जो जीत हार की वो बाद में आ जाती हैं। पहले ये स्टेप पूरा कर लो, उसके बाद जीत हार की बात करते रहेंगे यार। वो तो हमें तो आदत है, हम तो हर रोज आके यही बात कर रहे होते हैं, आज फिर आ गया, आज शिट हियर वी गो अगेन से ही स्टार्ट करते रहते हैं, कोई मसला नहीं है यार। पता है, look, you and I even before the start of the series did not see Pakistan win this series. We were like 2-1, but अब वो 1 पे भी खतरा आ गया। अब 3-0 पे हो गई है बात, but I still think there's a good 50% chance of Pakistan winning 1 out of the 2 remaining test matches. दोनों नहीं जीत रहे, शायद कहीं इनको कंडीशंस ऐसी मिल जाएं कि कैपिटलाइज कर सके, शायद इनके अंदर खुद थोड़ी वो हो जाए, you know, वो फीलिंग किक इन कर जाए कि नहीं यार, we got to be better than this. I don't know. But look, again, I'll end it with the same comment. All these people getting upset on what Stuart Broad has said or what Shield Berry has written, or Salman Butt shouldn't even have an opinion on Pakistan's tours to England. Honestly, he's the last person who should have an opinion on this. Look in the mirror or look at your team. और इसकी तारीफ तो नहीं होगी ना, तारीफ तो नहीं हो सकती इस टीम की, like बुराई करेंगे ना। It doesn't matter how bad England are. अगर इंग्लैंड इतनी बुरी है, आप इंग्लैंड से इन इनिंग्स इन 103 रन से हारे हो, हाउ अबाउट वी पुट इट दैट वे? इस तरह पर्सपेक्टिव में ले लो आप। स्टॉप एक्टिंग लाइक यू आर सम सॉर्ट ऑफ पावर हाउस. This is a really poor team, and that's where it is. Like, that's where your cricket's at, and hopefully, you know, this loss, this embarrassing loss or pounding can galvanize them कि थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलें. But I don't know, I don't see it. Hopefully, no, not at all. मैं खुश हूं कि मैं कमेंट्री कर रहा हूं, बट मैं कभी सोचता हूं कि कितना और मजा आ रहा होता अगर ये थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते। थोड़ी अच्छी क्रिकेट ना, क्या वही तो बात है सारी यार। Anyway, that's about it. हमने सोचा था कि छोटा सा शो करेंगे, मगर अब थोड़ी बढ़ास निकालते 1.5 घंटे करीब आ ही गए हैं। नहीं तुमने तो वो ज्यादा जरूरी थी ना कि तुम डैन लॉरेंस की इनिंग्स की बातें करो, तो यही होना। डैन लॉरेंस से 500 मारे हैं फर्स्ट क्लास में भी, काउंटी चैंपियनशिप में। ही डिजर्व्ड सम एयर टाइम, बट एनीवे, please be better, Pakistan. Please just put in some sort of a fight. Compete. Do better. Please compete. Do better. Like, subscribe, share, follow us everywhere. उसके अलावा पोस्टर जो अभी लगे नहीं हुए वो भी जाके आप खरीद सकते हैं। जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द, बीच में गेम शोज भी आते रहेंगे और बहराम और मैं भी आते रहेंगे। अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का कोई पता नहीं, उस पर करना पड़ जाए हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस। Bye Gaza, see you later. चलो भाई, बहुत भूख लग रही है, निकल।